Well, good evening, everyone. Welcome to our day 3. And today is going to be the most important day of all these 3 lessons because I'm going to give you the clarity actually. You will have a blueprint, what to do, what not to do, and how basically you'll take your English level to the next level, right? So I believe you have a notebook and a pen with you where I'll ask you to write down something and we all will be writing, right? So I'm going to do the one thing actually. I'm going to pause the chat today because what is going to happen is most important thing actually. So I don't want any chat to disturb anyone. So today I'll stop the chat. I'll start the chat. I'll stop the chat. This might happen 2 or 3 times while we have this session. Some guys are still coming. I totally understand. Though it is Sunday, and I believe, let me put it like to me only in case anyone writes, chat will come to me. It will not disturb others, right? So super video saying voice nahi aa raha hai, can't help actually in this case because people have not connected the audio. और ये थर्ड डे है, थर्ड डे भी ऐसा हो रहा है. I'm sad to see that. But चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. I start this session with a frame actually. Means like I need to tell you what is going to happen in this session is I'll give you 1-page blueprint. Basically, I have divided today's session in 3 parts. Part number 1 is the pronunciation drill. So what we'll do, I'll give you some super hacks to basically, better your pronunciation so that when you talk to people, you are really good, right? So part number 1 is this, hum pronunciation drills karenge. Part number 2, we will have a session on 1-page blueprint basically, so that you have the idea what to do, what not to do in LPRI formula, so that you take your English to the next level. Part number 3 is Himanshu Verma, I will not be sharing the recording. कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ये रिकॉर्डिंग है, क्या ये रिकॉर्डिंग चल रही है या रिकॉर्डिंग मिलेगी. ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं because we record almost every lesson. Right? I didn't record yesterday because I was not using my laptop. I was using somebody else's laptop. I didn't record that actually. So normally we record all these sessions for quality purpose. कि हम देख सकें. हमारे regular classes भी जो होती हैं, we record all the classes so that we can use for bettering the system, right? अभय जी, I understand. Okay, so अभी हम क्या करने वाले हैं? आज हम इस सेशन को 3 भागों में करेंगे. पहला भाग होगा प्रोनाउंसिएशन ड्रिल्स. तो मैं आपको कुछ सुपर हैक्स दूंगा आसान 10-15 मिनट्स के अंदर केवल. देन वील हैव 1-पेज ब्लूप्रिंट. हम बात करेंगे कि क्या करना है आपको नेक्स्ट 60 डेज तक और एब्सोल्युटली क्लैरिटी देने की आपको कोशिश करूंगा सो दैट यू हैव द आइडिया डे 1, डे 2, डे 3 क्या करना है हमें. देन वील टॉक अबाउट सुपर करियर फॉर्मूला. यदि आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसे हैं जो जॉब चाहते हैं या जॉब चेंज करना चाहते हैं या प्रमोशन चाहते हैं या अपनी जिंदगी में 10x ग्रोथ चाहते हैं, तो आई गिव यू सुपर हैक्स. उसमें से कुछ चीजें मैंने अपनी कंपनी चलाते हुए सीखा, कुछ चीजें मेरे गुरु ने मुझसे साझा किया और हमने उसको बहुत सारे लोगों पे अप्लाई किया एंड दे आर वर्किंग. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन. वेल, एक्चुअली मैं लगभग 2001 से पढ़ा रहा हूं और मेरी जिंदगी में ऐसे छोटी छोटी कई घटनाएं हुई जिन घटनाओं ने मुझे पैरा टीचर बनने में मदद की, जिन घटनाओं ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और बहुत बार पढ़ाते हुए बात करते हुए हम उन घटनाओं की बात करने लग जाते हैं. सो आज के इस सेशन में मैं आपको ब्रेकआउट रूम में नहीं भेजूंगा, बट वी विल हैव 1-to-1 लाइक एक एक पार्ट में हम कुछ चीजें सीखने जा रहे हैं. आज मुझे याद आता है कि जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की, पढ़ाने की शुरुआत की इन 2001, तो मेरे एक मित्र होते थे, वो भी पढ़ाते थे. इन टर्म्स ऑफ मनी वी वर सक्सेसफुल. हम अच्छा कर रहे थे अपने शहर में उस एज में. वी वर डूइंग प्रीटी वेल. हम लोगों ने दिल्ली में एक लाइब्रेरी ज्वाइन की और हम वीकली वहां जाते थे, बुक्स लेते थे, घर आते थे, पढ़ते थे सो दैट हम अपनी लैंग्वेज की नॉलेज को बेहतर कर सकें, सो दैट हम बेहतर पढ़ा सकें. मुझे आज भी याद है कि हम उस लाइब्रेरी में दोनों लोग थे और लोग आ रहे थे, जा रहे थे एंड वी वर टेकिंग आउट बुक्स एंड अदर थिंग्स एक्चुअली. ऐसे में एक शख्स आते हैं जो मेरे दोस्त से कुछ बात करने लगते हैं कि ये बुक कैसी है, ये बुक अच्छी है क्या. और जब आपके अंदर ज्ञान कम होता है तो एक्चुअली आप बहुत बखेरने लग जाते हो, आप सबको पढ़ाने लग जाते हो. तो वो हमारा एक दौर था जिसमें हमें बहुत कुछ नहीं आता था.
बट हमें लगता था हम कुछ हैं। सो मेरे दोस्त ने जो टीचर थे उन्होंने जबरदस्त तरीके से उन्हें पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, दिस बुक इज ग्रेट एंड दिस बुक इज गुड फॉर ग्रामर, और वो स्टाइल से इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे थे एंड ही वाज टॉकिंग टू हिम। मैं पास में था, मेरे अंदर भी जो टीचर था वो थोड़ी देर में जाग गया और मैंने भी उन लोगों की टीम को ज्वाइन कर लिया। और जो मेरी छोटी सी समझ थी उस समझ के हिसाब से मैंने उन्हें बताना स्टार्ट किया, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रामर सीखना है तो ये अच्छा है, प्रोनाउंसिएशन सीखना है तो ये अच्छा है, वोकैब सीखनी है तो ये, एंड ऑल ऑफ दैट हम लोग बात कर रहे थे एक्चुअली। व्हाइल आई वाज टॉकिंग टू हिम, मुझे जो किताब ढूंढनी थी वो मुझे दिखाई दी एंड आई वेंट देयर। इतने में ये जो शख्स हैं मेरे दोस्त से बात करने लगे और उन्होंने कुछ यूं शुरुआत की कि ये जो घड़ी उन्होंने पहनी हुई थी, उन्होंने पूछा ये कितने समय से है आपके पास, कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में। तब तक मेरे दोस्त को अंदाजा नहीं था कि ये कहाँ जाने वाला है कॉन्वर्सेशन। ही आस्क्ड 10 सेंटेंसेस, और जब मैं दूर था तो मैंने देखा मेरे कुछ दोस्त कुछ गलत बता रहे थे एज पर माई नॉलेज। तो मैं भी वहां पहुंच गया, मैंने कहा नहीं ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। और हमने थोड़ी सी वहां बातें की। बात करने के बाद उस व्यक्ति ने इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया एंड वी वर लाइक, हम क्या हैं, इतनी सी नॉलेज हमें उसके सामने। ही वॉज जाइंट एक्चुअली, ही वॉज सच अ पर्सनैलिटी। जैसे ही उसने पहले 2 सेंटेंस बोले हमें अपनी औकात समझ में आ गई कि हम क्या हैं और कहाँ से हम निकल के आए हैं। He started talking to me, my friend, and then he just took his visiting card and he gave his visiting card to us. उनकी विजिटिंग कार्ड पे इतनी डिग्रियां थी। He was London returned, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस जो केवल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए काम करती है, उनके साथ में वो ऑथर थे। बहुत सारी इंग्लिश लैंग्वेज की किताबें लिख चुके थे, सीरीज पीटीए टेप्स बहुत सारी थी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस उन्हें बुला रहे थे, और वो लंदन मतलब इंडियन थे वो, बट ही वाज देयर आउटसाइड। सो जब उन्होंने बात करनी स्टार्ट की मुझे पहली ही बात में समझ में आ गया, दिस इज द पर्सन हु कैन ट्रेन मी, मतलब इतनी नॉलेज उनको। देन ही सेड समथिंग, ही सेड अशोक यू आर अ गुड पर्सन, यू कैन बी अ गुड टीचर, योर फ्रेंड शुड लीव दिस प्रोफेशन, बिकॉज उन्होंने 10 में से 8 सेंटेंस गलत बताए, आपने 10 में से 8 सही बताए एंड यू आर द फर्स्ट पर्सन who has told these 8 sentences correct। उन्होंने कहा मैं एग्जैक्ट लगभग यही 8-10 सेंटेंस इंडिया में पूछता हूँ and I find people can't tell even 1 or 2 correct। आपने 8 इतने से करेक्ट बताया, I really appreciate। Then he said something, he said Ashok your grammar is good, your vocab is good, you may be a good teacher too, but your pronunciation is bad, you come from UP and whoever will talk to you will guess कि आप यूपी से हो। He said न्यूक्लियाइज्ड एक्सेंट होना चाहिए। एंड फिर उन्होंने हमें 2 चीजें केवल वहां सिखाई। जब उन्होंने हमें 2 चीजें सिखाई उस समय मुझे फिर ये रियलाइजेशन हुआ कि अशोक अगर ये व्यक्ति जिंदगी में आ जाए, अगर ये सिखाने को तैयार हो जाए तो थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट। वो एक ऐसा दौर था शायद कि पैसे का वैल्यू ज्यादा था, लोग इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे लर्निंग में एंड ऑल ऑफ दैट। देन ही सेड इन केस इफ यू वांट टू लर्न इट, दिस इज माय एड्रेस। उन्होंने विजिटिंग कार्ड पे दिखाया and he said I charge 1000 rupees for 55 minute session, 1000 रुपए 55 मिनट सेशन के। in case you want to learn you can give me a call on this number। उस दौरान जो फोन चलते थे वो आज की तरह स्मार्टफोन नहीं होते थे। अगर आपको याद हो एनी वन ऑफ यू, छोटे से फोन चलते थे, ब्लू लाइट ब्लैक लाइट एंड ऑल ऑफ दैट। हम लाइब्रेरी में 10-11 बजे से लेके 2 बजे तक मैं और मेरे मित्र केवल ये बहस करते रहे कि हम जाएं कि नहीं जाएं। मैं कह रहा था हमें जाना चाहिए, 2-3 घंटे में 2-3 हजार रुपए लगेंगे बट विल लर्न अ लॉट। और वो मुझसे बार बार कह रहे थे कुछ नहीं है, ग्राहक ढूंढ रहा था, बेवकूफ बना रहा था, कैसे आया देखो, कैसे बात करके हमें घुमा गया, अपना कार्ड दे गया एंड ऑल ऑफ दैट। आई सेड जो कुछ भी था, बट उसके पास वो है जो हमें चाहिए, विच कैन एक्चुअली हेल्प अस। बट वो मुझसे लगातार मना करते रहे। जब ये चलता रहा तो मैं कंफ्यूज हो गया और मैंने अपने गुरु को फोन मिलाया, जिनको मैं आज तक अपने जीवन में फोन मिलाता हूँ जब जब मैं अटक जाता हूँ। वो उन्होंने मुझे स्कूल में पढ़ाया था बट ही इज माय मेंटोर एक्चुअली। तो मैं कभी कंफ्यूज होता हूँ तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो आई कॉल्ड हिम अप एंड आई सेड गुरुजी दिस इज द सिनेरियो, दिस इज द सीन, क्या करूं। एंड ही सेड टू मी समथिंग, ही सेड अशोक आज मैं तुझे जो बात बताने वाला हूं उसे अपने दिल की डायरी में लिख लेना। कभी भी जिंदगी में कंफ्यूज्ड हो तो एक रूल फॉलो करना। उन्होंने कहा ये मेरे गुरु ने सिखाया था, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ही यूज्ड टू स्पीक हिंदी दो, but I always say it in English। So he said, any decision
which takes you towards your goal is the right decision. कोई भी डिसीजन जो तुम्हारे मकसद, तुम्हारे गोल की तरफ ले जाएगा, वो एक सही डिसीजन है। एनी डिसीजन विच टेक्स यू अवे फ्रॉम योर गोल इज अ रॉन्ग डिसीजन। जो भी डिसीजन तुम्हारे मकसद, तुम्हारी गोल, तुम्हारी मंजिल से तुम्हें दूर ले जा रहा है, वो रॉन्ग डिसीजन। कई बार वो डर की वजह से आएगा, कई बार वो लालच की वजह से आएगा। देन ही सेड आस्क योरसेल्फ नाउ, अगर वहां जाके आप 2, 3, 4, 5 हजार रुपए लगाओगे, will it take you towards your goal? I said yes. He said damn it, then why are you waiting? मैं तुम्हारी जगह होता अब तक उसके यहाँ बैठा हुआ होता। Go and join him. मैंने फोन को डिस्कनेक्ट किया। I said to my friend, मैं जा रहा हूँ। You want to come with me? Come. I'm going. He said मैं भी चलता हूँ। हम जब वहां पहुंचे तो उसने मुझे, मेरे दोस्त ने मुझे रास्ते में तैयार कर लिया। तू दे देना पैसे, मैं वहां बैठा रहूंगा तेरे साथ जरूर। आई डिडंट हैव कार एट दैट टाइम। हम लोग लोकल बस वगैरह से सफर करते थे। सो ही सेड 60 किलोमीटर दूर था हमारा घर वहां से। हापुड़ एक छोटी सी शहर है यूपी में। सो ही सेड तू कर लेना, आई विल सिट देयर एंड ऑल ऑफ दैट। तो हम वहां पहुंचे और मैंने उनसे बात की। मेरे दोस्त को चाय के साथ एक अलग जगह बिठा दिया गया। एंड ही सेड गिव मी 1000 रुपीज एंड ही स्टार्टेड ट्रेनिंग मी। उन्होंने कहा कि दुनिया फनेटिक्स सीखती है बिकॉज ऑफ इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन मैं आपको छोटे छोटे फंडा सिखाऊंगा विच विल चेंज योर लैंग्वेज। उन्होंने मुझे सिखाना स्टार्ट किया, अभ्यास कराना स्टार्ट किया। आफ्टर 55 मिनट्स ही सेड अशोक 55 मिनट्स इज ओवर, इफ यू वांट टू लर्न मोर यू नीड टू पे मी 1000 रुपीज मोर। सो मैंने उनको 1000 रुपए और दिए। उस जमाने में 1000 रुपए की कीमत होती थी इनफैक्ट। सो आई लर्न फॉर 55 मिनट्स मोर एंड देन ही सेड अशोक 55 मिनट्स ओवर, डू यू वांट टू लर्न मोर। मैंने उनको फिर दिए और तब तक रात हो चुकी थी। आई वांटेड टू लर्न मोर बट ही सेड अशोक it is 3 hours, I am not that young like you, तो मैं और नहीं बैठूंगा, but in case if you want to learn at some other time you can come by. He gave me his another visiting card. He said this is my personal number. On his visiting card he said these are like my people attend actually on these numbers. This is the card I give it to only people I like, so I'm giving it to you, don't share with your friend, but in case you want to call you can call me directly anytime. So I learned those things with that. जब मैं जाने लगा, he said to me, अशोक मुझे एक बात कहनी है जाने से पहले। I said what? He said अशोक जो भी मैंने तुझे सिखाया है वो यहाँ है अभी। It is not on your tongue. When you go back to your town और आप बोलने की कोशिश करोगे, people might laugh at you. People might say जबान टेढ़ी करके बोल रहा है, and they'll pull you back where they are. ऐसा होने मत देना। Practice, if I say 20 times, practice 200 times. And I said, Guruji, I am going to practice 2000 times. I'm mad. If I do something, I do it very, very sincerely. I took that piece of paper and I said, I would definitely meet you someday. And I came back. On the way back, मैंने अपने दोस्त को सिखाना स्टार्ट कर दिया whatever I learned. I believe there will be a lot of people who would say, तुम फ्री में क्यों सिखा रहे हो? But I was thinking, I'm repeating it. He is learning for free, that's all okay. But चूंकि मैं सिखा रहा हूँ, I'll improve. I came back basically, फिर हजारों स्टूडेंट्स को सिखाना स्टार्ट किया. My language changed, books लिखी, a lot of different things we did. But आज उस बहुत सारी लर्निंग में से मैं 10 मिनट्स में आपको कुछ देने वाला हूँ। जो मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूँ, प्रोबेबली शायद 2-3 घंटे का मैं 10 मिनट्स में करूंगा, बिकॉज मैं आपको कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगा। I'll give you super solid, like in one go style. But once again, जो उन्होंने मुझे कहा, ये आपकी कॉपी में आ जाएगा, ये आपके यहाँ आ जाएगा, but you need to practice 20 times, 200 times, 2000 times to come it on your tongue. मेरे दूसरे जो रेगुलर कोर्सेज होते हैं वहां मैं पूरी बुकलेट देता हूँ प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, एंड वी गो सुपर क्रेजी इन दैट। बट चूंकि मैं इसमें वो नहीं दे सकता हूँ, स्टिल आई वांट टू शेयर सम सुपर कूल हैक्स। मैं इसमें कुछ लिखवाऊंगा आपको, लेकिन जब मैं लिखने को कहूँ तब कहना, लिखना। जितनी जगह छोड़ने को कहूँ उतनी करना, बिकॉज दिस विल सेव योर टाइम। अदरवाइज आप मुझे चैट में बार-बार पूछोगे ये रह गया वो रह गया। आई विल मेक इट सुपर इजी। सो लेट मी शेयर माय द screenshot of my book basically, which I use in my other courses. इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये बहुत डिटेल में ये नहीं सिखाऊंगा, एस की साउंड होती हैं, लाइक ओके। मैं उसी पेज को बड़ा करता हूँ जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ।
एस साउंड, डी साउंड, ऑल ऑफ दैट ये नहीं सिखा रहा हूँ, दिल बी लिटिल डिफिकल्ट राइट नाउ। मैं आपको कुछ और आसान इजी सिखाता हूँ। ओके, लेट मी गो विद सफिक्सेस। एक्चुअली जो अभी हम सीखने जा रहे हैं, जब मैं लिखवाऊंगा तब लिखना, बट दिस विल इंस्टेंटली चेंज द वे यू स्पीक। इंग्लिश में जब कभी भी ये आ जाता है, जस्ट लेट मी टेक पेन। इंग्लिश में जब कभी भी ये आ जाता है MENT, तो जनरली इसको लोग बोलते हैं मेंट, जबकि इसका उच्चारण जब किसी शब्द के बाद में आएगा तो बोलेगा मंथ। Forgive my handwriting because I am using a stylus. This is not pen and I am not visual of it. So अब इसका जो उच्चारण है वो होगा advancement, ना कि advancement। पहला तो AD बहुत जगह अड बोलेगा, जैसे आप देखेंगे admit, बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं admit, जबकि ये है admit, राइट। ऐसे ही आप इंग्लिश में देखेंगे कि एक शब्द होता है AGREE, अग्री, एग्री नहीं, आई अग्री विद यू, ना कि एग्री विद यू। AGAIN, अगेन, ना कि अगेन। ऐसे यहाँ MENT को जोड़कर बोलेंगे तो होगा एडवांसमेंट, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट, पेमेंट, ना कि पेमेंट। पेमेंट आ गया, नॉट दिस। एडवर्टीजमेंट, एडवाइटाइज, पता नहीं क्या बोलते हैं लोग उसको, राइट। सो फर्स्ट यू विल राइट, हाइफन लगाएंगे और हम लिखेंगे MENT, और चाहे तो हिंदी में मंट लिख सकते हैं। पहले ये लिख लीजिएगा केवल किसी भी एक पीस ऑफ पेपर पे, फिर कुछ जगह छोड़ दीजिएगा, जो भी मैं शब्द लिखवाऊंगा उनके नीचे कुछ जगह छोड़ दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा सैलेबल्स की वजह से, जो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये जो वर्ड है ये अपवाद है, तो ये मेंट ही बोलेंगे, लेमेंट, सीमेंट, आप इसको मंट नहीं बोलेंगे यहाँ, राइट। सो नेक्स्ट, just give me 1 second. Next comes AGE या EGE। जब कभी भी ये आप अकेला बोलते हैं तो एज बोलते हैं, लेकिन किसी शब्द में लास्ट में आता है तो ये एज बोलता है, तो बोलेगा एलेज, कैबेज, यू नो, मॉर्गेज। 1 लीटर में बाइक कितनी चलती है, माइलेज, एवरेज, विलेज। अधिकांश लोगों को मैंने देखा एज बोलते हुए, विलेज। व्हाट इज योर विलेज नेम, what's your village name, village, village, mileage, mileage, average, average। so people mispronounce these words, जिसकी वजह से उनकी जो लैंग्वेज है वो अच्छी नहीं लगती। इंग्लिश में वर्ड है WAVGE, वेज, CAGE, ये राइट है। केज वेज ही बोलेगा, किज विज मत कर दीजिएगा। ये सिलेबल्स की वजह से, चूंकि 2 सिलेबल्स वर्ड है, वो मैं अभी नहीं सिखा सकता हूँ आपको यहाँ पे, बट अगर मौका लगा तो आई शूट अ वीडियो एंड गिव इट टू यू, राइट। अब इंग्लिश में जो मंथ लिखा है उसके नीचे थोड़ी जगह छोड़ दीजिएगा, फिर लिखिएगा AGE हाइफन लगा के। एज लिख सकते हैं इसके सामने अगर आप चाहें उच्चारण में तो। नेक्स्ट कम्स LESS, NESS या MAN। अब देखिएगा इसका जो उच्चारण है वो लेस नहीं है, वो है लस। हेल्पलेस, होमलेस, केयरलेस, कुछ लोग तो केयरलेस बोलते होंगे, राइट। सो ही इज हेल्पलेस, ही इज हेल्पलेस, ही इज होमलेस, नो। ऐसे ही NESS इज नस, बिजनेस, हैप्पीनेस। MAN इज मन, नॉट मैन। अकेला मैन ही होता है, किसी वर्ड में जुड़ के बोलता है वुमन, राइट। आप उसको उसी तरीके से उच्चारण बोलेंगे, बिजनेसमैन, सर्विसमैन, पुलिसमैन। यू गो एंड चेक इट ऑन गूगल, साउंड देख लीजिएगा, आपको पता पड़ जाएगा इसके अंदर। सो अब 3 शब्द लिख लीजिएगा, LESS हाइफन लगा के, NESS और MAN। हर बार कुछ जगह छोड़ दीजिएगा, बिकॉज एट द एंड आई विल टेल यू व्हाट टू डू। देन कम्स एबल। अकेला एबल है, किसी शब्द में जुड़ता है तो बोलता है अबल, अबल। जैसे आप बोलेंगे एडमायरेबल, एडमायरेबल नहीं, डिजायरेबल, डिजायरेबल नहीं। या एक शब्द होता है SUITABLE, लोग बोल देते हैं सुटेबल, तो इट इज नॉट सुटेबल, सूटेबल। वेजिटेबल, वेजिटेबल नहीं, आई हैव बॉट वेजिटेबल, आई हैव बॉट वेजिटेबल। दिस isn't suitable for you, this is not suitable for me,
तो you get the essence actually. ATIVE is not ative, it's attive. attive किसी भी शब्द के लास्ट में आएगा तो attive बोलेगा. Negative, relative, alternative, alternatively. एक व्यक्ति कैसे बोलता है? My relative has come. My relative has come. Why do you talk so negatively? Negatively. Right? Alternatively. Classes जो चलेंगी वो alternate चलेंगी. Alternate, I don't know how do you basically pronounce, but लोग गलतियां करते हैं. तो right, able and attive hyphen लगा के लिख लीजिएगा इसको भी. We'll discuss what to do. I'm going very fast because आज मुझे कई सारी चीजें आपको करानी है. मैं पहले ये नहीं कराता था, लेकिन अभी मुझे लगा कि I should tell you basically this. Then comes LOGY. LOGY. जब भी इंग्लिश में LOGY लास्ट में आता है तो ये लोजी नहीं बोलता, लजी बोलता है. साइकोलॉजी, 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 पैथोलॉजी, 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 बायोलॉजी, नो की बायोलॉजी. राइट, मुझे गलत वाला सोचना पड़ता है बहुत. इंग्लिश में जब कभी डी के बाद जे आ जाता है तो डी साइलेंट हो जाता है 80% केसेस में. एडजेक्टिव, एडजस्ट. अब इसको लोग बोल देते हैं एडजस्ट, एडजस्ट, एडजेक्टिव. राइट, एंड यू माइट से कि सर कौन बोलता है? ऐसे ही बोलता है इंडिया में भी. People who speak right, people who speak well, they speak like this. But हम नहीं समझ पाते हैं. हमें कई बार लगता है पता नहीं कैसे बोल रहा है. Right? So right, LOGY also. ऐसे बहुत सारे शब्द हैं. MB में B साइलेंट हो जाता है 95% केस में. THUMB, thumb, thumb नहीं. जिससे आप बालों को काटते हैं, कॉम्ब नहीं. टेररिस्ट जो आके लगा देते हैं बॉम्ब, बॉम्ब नहीं. PLUMBER, प्लम्बर, प्लम्बर नहीं. इंडिया में बहुत सारे लोगों को देखा होगा प्लम्बर बोलते हुए. सो यू नीड टू हैव राइट प्रोनाउंसिएशन. द डे यू हैव राइट प्रोनाउंसिएशन, आपको अपनी लैंग्वेज में ऐसा मजा आना स्टार्ट हो जाएगा. लोग आपसे पूछने लगेंगे यार तू बोलता बहुत अच्छा है. सो आई विल नॉट बी शेयरिंग द रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ दिस. राइट, सो विकास जी, आई वॉन्ट बी शेयरिंग दिस, बट मैं प्रोनाउंसिएशन में प्लान कर रहा हूँ एक क्लास डालने का आपके उसमें. शायद वो बहुत ज्यादा डिटेल में ना हो, बट आई एम प्लानिंग टू गिव यू समथिंग ऑन दैट पैटर्न सो दैट वो आपको हेल्प करे. राइट, सो हैव यू रिटन. अब देखिए 2-3 चीजें समझ लीजिएगा. जो मैंने जगह आपको छोड़ने के लिए कहा है, जो भी जगह आपको छोड़ने के लिए मैंने कहा है, उसमें करना क्या है? उसमें आपको शब्द लिखने जितने भी मिल जाएं. जैसे एबल वाले मिल जाएं, डिजायरेबल, एडमायरेबल, सूटेबल, वेजिटेबल. राइट डाउन एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन. AGE वाले जितने मिल जाएं, DJ वाले जितने मिल जाएं, MAN वाले जितने मिल जाएं. नाउ विद राइट प्रोनाउंसिएशन स्पीक ऑल द वर्ड्स, मेक सेंटेंसेस फॉर 20 days. नाउ धीरे धीरे आप पाएंगे 7-8 दिन के अंदर आप थोड़ा बेहतर बोलने लगे हो. 12-13 दिन के अंदर और बेहतर हो गए. 20 दिन में नेचुरल हो गए हो. गलत वाला ध्यान रखना पड़ता है. क्या है? अगर कोई मुझसे पूछता है मुझे बहुत सोच गलत वाला कौन सा है, फिर मैं वो सोच के एग्जांपल देता हूँ. राइट, सो हिमांशु जी, लेट मी टेल यू, दिस इज लाइक ब्रिटिश और अमेरिकन की जो आप बात कर रहे हैं. दिस इज द न्यूट्रलाइज्ड वन. एक्सेंट इज समथिंग एल्स. लोगों को मालूम नहीं होता है. एक्सेंट इज द वे यू स्पीक. प्रोनाउंसिएशन इज समथिंग एल्स. हाँ, प्रोनाउंसिएशन में भी अंतर है. जैसे आप अमेरिकन लोगों को देखेंगे तो वो ए को बोलते हैं ए, तो बोलेंगे डांस, क्लास, पासवर्ड, यू ड्राइविंग फास्ट, वैसे बोलेंगे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट. राइट, सो अभी I have one question. I'll show you. Don't you worry about it. वो मैं आपको दे दूंगा. Don't you worry about it. Hopefully you have written it. Right. So now I have a question. Will you use this? It is not easy because जब आप बोलेंगे तो आपको आदत लगने में थोड़ा समय लगेगा. Right. Please let me know in chat. अभी chat सबको दिखाई दे जाएंगे शायद. Please let me know in chat कि will you use it or not. Say yes or no. Say yes or no. Yes. Thank you so much. Fantastic. I'm loving it. Great. I love that. Thank you so much for writing. Now I have another question. And question is this. Actually 60 days में, अभी मैंने आपको बताया नहीं, अभी मैं बताऊंगा कैसे यूज करेंगे. Today is the almost last live class. आज last live class है. 3 लाइव क्लास होंगी लेकिन वो प्रैक्टिस बेस्ड नहीं होंगी.
अभी मैं आपको सुपर क्लैरिटी दूंगा कि आप कैसे इस्तेमाल करेंगे इस कोर्स को जो आपको 60 डेज में मिला है। मैं अभी आपको एक 1 पेज ब्लूप्रिंट लिखवाने वाला हूँ। आई टेल यू दिस, बट टिल नाउ लेट मी नो वन थिंग। जो आपने पैसा दिया 199, आई डोंट नो कि आपको कैसा लगता है, क्या नहीं लगता है, कितनी वर्थ आपको समझ में आती है, क्योंकि एक वीडियो एनिमेटेड बनवाएंगे ना आप, उसकी ऑडियो की रिकॉर्डिंग प्रोबेबली इतने पैसे में नहीं बनेगी। बट लीव ऑल ऑफ दिस, लेट मी नो इन योर ओपिनियन, जो आपने 199 दिया 60 डेज, क्योंकि लाइफ तो मैं सिखाने वाला नहीं हूँ, बट मैं आपको क्लैरिटी दूंगा, आप उसको सीखने वाले हैं। इज इट द वैल्यू ऑफ मनी? इज इट द वैल्यू ऑफ मनी? क्या आपको लगता है कि आपको 199 रुपीज का वर्थ मिला है? राइट, यस और नो? श्योर, डेफिनेटली, यस, yes, worth it, yes, overvalued, sure, yes, more than that. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. Obviously, yes, thank you so much. I love that, thank you so much. Overwhelming. I have another question, then हम blueprint पे आते हैं, and question is this. अभी तो जो मैंने चार्ज ले लिया, मुझे और नहीं चाहिए आपसे, you have got this. I'm planning to increase the price of 199 right now, क्योंकि कुछ समय से चल रहा है, we'll be stopping it, right? What do you think should be the value? क्या वैल्यू, क्या प्राइस होना चाहिए? आपसे जो ले लिया, what should be the price of this course in your opinion? Right? Let me know the price. हम और दे सकते हैं 999, 500 rupees, 199, 499, 2100 rupees, 499, 499, 499, 999, 399, 500, 999, 1000. Okay, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Fantastic. Totally up to you, sir. Okay. Actually, I see it as a mission to help people. I'm not doing it to generate money because, like, by God grace, we are generating a lot of money for, because of different reasons. You'll come to know. अभी मैं chat, अच्छा, ईशान is saying कि 99 होना चाहिए. We have charged more. 199 हमने ज़्यादा ले ली है. It should be 99. One person is saying this. The rest of people are saying 499 or 999 or 3099, 5000 rupees. Thank you so much. I value everyone. I value even 99. You are doing any live session in Delhi and Noida? No, actually, I tell you one thing. I'll let you know. I don't do any kind of live session. I have my different business. यहाँ भी live classes चलती हैं with me and with my teachers. I have a different model, but we are doing it for two reasons. Number one is to help. 199 is correct. Arunji says. Thank you so much. Thank you so much. I'm stopping the chat for some time, and then हम chat को जब जरूरत होगी तो दोबारा खोल देंगे. अभी chat जो भी लिखेंगे वो मेरे तक जरूर आएगी. Danish ji, thank you so much. Danish ji says, I think I will not get like you with more than 10K. 10,000 से ज्यादा खर्च करके भी आप जैसे नहीं मिलेंगे. Thank you so much. I really appreciate that. अभी हम इसको छोड़ के 1 पेज ब्लूप्रिंट पे आते हैं. मैं कुछ लिखवाऊंगा, बट वंस अगेन जो मैं लिखवाऊंगा वो प्लीज तब तक मत लिखिएगा जब तक मैं ना कहूं आप लिखें. अदरवाइज क्या होगा, मुझे लिखवाना कुछ होगा एंड यू विल राइट समथिंग, फिर आप काटेंगे. राइट? सो हाउ वी कैन कॉन्टेक्ट यू सर इन फ्यूचर? I'll let you know everything. Don't worry about it. Don't worry about it. So let me show you something. और थोड़ा सुपर फास्ट चलूंगा. मैं एक दो स्लाइड छोड़ सकता हूं इसमें. Some people are coming now. So इसको मैं हटा देता हूं. Like, ये सब प्रोग्राम्स हैं जो डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट प्रोग्राम्स लेवल पे किए हुए हैं. आई विल नॉट टॉक अबाउट इट. समय नहीं है आज. मे बी अभी डेली हैंड पे अगर आपने देखा हो, आई वाज रिसेंटली फीचर्ड हाउ अ फादर इज चेंजिंग द एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि हम स्कूल को सर्विसेज दे रहे हैं. लेट मी डायरेक्टली कम टू माइथ्स, टू मिसकंसेप्शंस. बेसिकली कितने मिथ हैं हमारे दिमाग में. मैंने कल कहा था, कल बात करूंगा इसके बारे में. एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन 4-5 डाउट के तहत अंग्रेजी को सीख रहे हैं. तो नंबर 1, इस तरह से हमें नहीं सीखना है. ये इतने पावरफुल डाउट्स हैं, इतने पावरफुल चीजें हैं जो लोग जनरली कहते हैं बिना ये जाने कि ये करेक्ट है कि नहीं. जैसे एक व्यक्ति आएगा और आपको ज्ञान देने बैठ जाएगा. अबे कुछ भी बोल तो सही. जितना बोलेगा उतना अंग्रेजी आएगी. इट्स अ बुलशिट. बिकॉज अगर आप इनकरेक्ट इंग्लिश ही बोलते रहे बहुत समय तक,
तो ऐसे ही लोगों की कैटेगरी में पहुंच जाएंगे आप, जहां आप इंग्लिश बोल रहे होंगे बट आपको सामने वाला समझेगा नहीं, नंबर 1। दूसरा, आप गलत ही बोलते रहोगे। आज किसी ने व्हाट्सएप पे कुछ कोर्स से संबंधित पूछा और मुझे उनसे कहना पड़ा कि भाई साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा, व्हाट टाइप ऑफ इंग्लिश इज दिस। पूरी इंग्लिश थी लेकिन वो पता नहीं क्या लिख रहे थे उसके अंदर, फ्यूचर का सवाल पास्ट में। सो फर्स्ट, स्पीकिंग मोर एंड मोर इज द रॉन्ग फिलोसफी, रॉन्ग। नंबर 2, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यू नीड टू नो ग्रामर या ट्रांसलेशन आ जाए तो हम इंग्लिश बोल लेंगे। फ्रॉम अगेन, बिकॉज ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ग्रामर या ट्रांसलेशन से आएगी। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? अगेन हाथ जोड़कर एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कोई यहाँ अध्यापक है, बट मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे अध्यापक देखे हैं जो वास्तविकता में ग्रामर ही पढ़ा रहे हैं और उनकी ग्रामर बहुत अच्छी होती है। यूं आप बोलिए, वो यूं ट्रांसलेट कर देंगे, समटाइम्स इवन वो चीजें जो शायद मैं ना कर पाऊं, बट दे डोंट स्पीक इंग्लिश। रीजन, ट्रांसलेट कर रहे हैं और 3 बार ट्रांसलेशन लग रहा है। किसी ने कुछ कहा, हिंदी में समझो, उसका आंसर सोचो, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तो ये लोग क्या कहते हैं, लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। क्यों? क्योंकि आप गलत तरीके से बात कर रहे हैं। जब आप हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में ख्याल आते हैं, पंजाबी बोलते हैं पंजाबी में ख्याल आते हैं, जो लोग गुजराती बोलते हैं गुजराती में ख्याल आता है। बट जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम अपनी लैंग्वेज से ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। रॉन्ग मेथोडोलॉजी, नहीं करना है। देन कम्स, लोगों को लगता है बहुत वोकैबुलरी चाहिए, तो उन्हें जहां मिलेगा वहां लिखने लग जाएंगे, और आप पाएंगे जितनी उनकी लिखने की वोकैबुलरी है, बोलने की नहीं है। तो कई बार वो लिखने में इस्तेमाल कर लेंगे, पढ़ के बोलेंगे ये मुझे आता है, पर टाइम टाइम पे उसे याद नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने रॉन्ग तरीके से सीखा। दूसरा, आपको केवल 5,000 शब्द चाहिए ज्यादा ज्यादा, 4 to 5,000। 10+2 किया हुआ है, 1,500 से 2,000 ऑलरेडी होंगे, बट आप उनको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, राइट? या पूरा यूज नहीं आता है, या वो गलत मेमोरी में है, तो यू डोंट नीड लॉट ऑफ वोकैबुलरी। लास्ट, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। नो, राइट प्रैक्टिस makes takes you towards perfection. Practice will not. You practice with the wrong methodology, आपको गलत आएगा, राइट? ऐसे बहुत लोग देखे हैं मैंने, तब ये बात कह पा रहा हूँ। नाउ आई एम टेलिंग यू अ फॉर्मूला जो हमें 2 महीने तक इस्तेमाल करना है। क्या है वो फॉर्मूला? एक फ्रेश पेज पर, चूंकि कॉपी के पहले पेज पे लिखना होगा आपको, ऊपर की तरफ पेज पे लिख लीजिएगा LPRI फॉर्मूला। LPRI फॉर्मूला, केवल इतना लिख लीजिएगा, LPRI फॉर्मूला। हम इसको एक एक करके लिखेंगे, जब मैं लिखने को कहूंगा तब लिखना केवल। व्हाट इज LPRI फॉर्मूला? पहला, L स्टैंड्स फॉर लर्न। सो LPRI के नीचे लिख लीजिएगा लर्न, सीखना है आपको। अब सीखना जो है आपको, वो ध्यान रखना है। यदि सीखते हुए आप कह रहे हैं रहा है, रही है, ता है, ती है, जा रहा हूं, खा रहा हूं, कुछ भी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो आप वीडियो को के विरुद्ध चल रहे हैं। वीडियो में ये बताया गया है कि ये नहीं करना है, बट कुछ लोग चूंकि खुद पढ़ रहे होते हैं, टीचर नहीं होता सामने, तो वो उसी डर से पढ़ रहे होते हैं, सामने वाले सिस्टम को अपने तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, खुद नहीं बदलते। तो यू डोंट हैव टू ट्रांसलेट। अब प्रत्येक लर्न वाली वीडियो में मैंने आपको TPR दिया है, स्टार्टिंग की एटलीस्ट 30-40 वीडियोस में तो मिलेगा ही मिलेगा, ये वाला। इसमें अलग अलग TPR होगा, जेस्चर तो मैंने स्टार्टिंग में सब में दिया है, आगे चल के थोड़ा एडवांस आ जाएगा। ये हमें कौन से दिन करना है? केवल लर्न वाले दिन, मतलब डे 1। डे 2 पे नहीं करना, इवन डेज पे नहीं करना है, और डेज पे करना है। इवन डेज पे मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो लर्न के कौन से सेशन है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब ऑड डेज वाले लर्न लेसन है। तो लर्निंग लेसन में TPR सिस्टा जो बताया गया उसे हम करेंगे बिना ट्रांसलेशन के इस्तेमाल। देन कम्स P, नीचे लिख लीजिएगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अब ध्यान दीजिएगा, जितने भी इवन डेज हैं, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, वो सब प्रैक्टिस डेज हैं, जहां पे मैंने आपको एक वीडियो दी है और एक PDF दी है। PDF में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 करके होमवर्क दिए हुए हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी भाषा या कोई भी स्किल तभी आ सकती है जब हम उसका निरंतर प्रयास करें, प्रैक्टिस करें। स्विमिंग सीखने के लिए आपको पानी में जाना होता है। लैंग्वेज के लिए जो आप सीख रहे हैं, यदि आपने वो प्रैक्टिस नहीं की, आपने केवल वीडियोस देखी, तो ये बढ़ जाएगा, ये नहीं बढ़ेगा। यहां से यहां लाने के लिए यू नीड टू स्पीक। तो होमवर्क जो आप करेंगे, एक तो लिखने के फॉर्मेट में कर सकते हैं, दूसरा वीडियो। अगर आप लिखने से स्टार्ट करते हैं तो आपके पास 10 क्लास के बाद लिख के होमवर्क नहीं करना है, वीडियो बनानी है, चूंकि बोल के प्रैक्टिस करनी, हैंड राइटिंग का क्या करना है हमें। इस होमवर्क को आप फेसबुक पे जमा करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज, हम सीखेंगे,
दूसरे दिन हम प्रैक्टिस करेंगे, राइट। थर्ड कम्स रिव्यू। अब रिव्यू मीन्स ऐसा असंभव है कि आप कुछ करें, सीखें और गलती ना होंगी। दुर्भाग्य से इस कोर्स में मैं आपको रिव्यू नहीं दे सकता, क्योंकि वो नहीं बैठता उस तरीके से कि हम एक टीचर रखें, टीचर को दें अंडर दिस 200 बजट, तो आई कैन नॉट। बट आपको समाज जो होगा वो रिव्यू देना स्टार्ट करेगा कि तुम ये गलत कह रहे हो। कई बार तुम्हारा मन बताएगा। आप कांटेक्ट कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे। दे कैन ऑल्सो टेल यू कि प्रपोजिशन में कमी है तो वो लेसन देख लो, पास्ट में है तो लेसन नंबर 3 देख लो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, दे कैन हेल्प यू। लेकिन पहले हमें सीखना है, फिर हमें प्रैक्टिस करना है, फिर हमें रिव्यू करना है हम क्या गलती कर रहे हैं, राइट। लास्ट कम्स रिव्यू भी लिख लीजिएगा और चौथा लिख लीजिएगा इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट। अब जो सबसे मुश्किल है वो ये है, सबसे पेनफुल ये है, और मैं इस कोर्स में आई कैन नॉट गिव यू एक्चुअली दिस। क्यों कह रहा हूं पेनफुल है? ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि पेनफुल इसलिए है। ड्राइविंग मुझे कब आएगी? ड्राइविंग मुझे कब आएगी? ड्राइविंग मुझे तब आएगी, आई कैन गारंटी एवरी वन ऑफ यू, यदि आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो जो आज है वो कल नहीं होंगे, कल उससे बेहतर होंगे, परसों उससे बेहतर होंगे। आई कैन नॉट से कि 2 ही महीने में आ जाएगी, किसी को 2.5 में आएगी, किसी को 3 में आएगी, किसी को 4 में आ सकती है, बट एवरी वन ऑफ यू विल बी फ्लुएंट, आई कैन गारंटी इट। मेरी जिंदगी में आज तक एक मुझे व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये फॉलो किया और उसे इंग्लिश नहीं हो। ऐसे बहुत मिले जिन्होंने फॉलो 5 दिन किया छोड़ दिया, बट अगर आपने लगातार किया यू विल बी फ्लुएंट, आई कैन गारंटी इट। अब देखिए इम्प्लीमेंट क्यों? ड्राइविंग सीख रहा हूं मैं और ड्राइवर मेरे साथ में है, मैं एक मैदान में चलाता हूँ, जब तक मैं बिना ड्राइवर के अकेले हाईवे पे नहीं चलाऊंगा तब तक ड्राइविंग का क्या फायदा। सेम वे जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो आप शीशे के सामने, आप फेसबुक पे, आप प्रैक्टिस शीट पे अच्छी बोल लेंगे, बट आप इसके लिए तो अंग्रेजी नहीं सीख रहे ना। अंग्रेजी आपको चाहिए जब क्लाइंट से प्रेजेंटेशन देनी है तो कर लूं, जब इंटरव्यू हो तो उसके सामने फटाफट इंग्लिश बोल दो, जब मेरी मीटिंग चल रही हो और कलीग या सब लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं मतलब जो भी आपका पार्ट है ऑफिस का, घर का, वहां आप रियल लोगों के सामने बोल पाए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब आप रियल लोगों के सामने बोलेंगे तो रियल लोग यहाँ जैसे लोग नहीं होंगे जो आपकी गलतियों पे भी ताली बजाएंगे। तो वो ताली तो बजाएंगे लेकिन यहाँ बजाएंगे, तो अरे यार क्या बोल रहा है, खराब खराब इंग्लिश बोलता है, अंग्रेजी की टांग तोड़ने लगा, तूने अच्छा कोर्स खरीद लिया, देल से ऑल दैट बैड वर्ड्स। अब इससे हम पीछे जा सकते हैं या इससे आगे जा सकते हैं? मैं इसका आसान रास्ता भी थोड़ी देर में बताऊंगा, घबराइएगा मत, बट ये इंप्लीमेंट करना जरूरी है। यदि हम ये 4 चीजें कर लेते हैं, मैं इसका आसान रास्ता बताऊंगा, डोंट वरी राइट नाउ। यदि हम ये 4 चीजें कर लेते हैं, पहला हम लर्न कर लेते हैं, हम सीख लेते हैं, दूसरा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तीसरा हम रिव्यू कर लेते हैं, चौथा हम इसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हैं, यू विल बी वन ऑफ द मोस्ट फंटेस्टिक स्पीकर्स अराउंड यू, एक्चुअली जो लोग हैं आपके आसपास। दिस फॉर्मूला वर्क्स। मैंने इस्तेमाल किया है, हमारे सारे टीचर्स ने इस्तेमाल किया है, हमारे लाखों स्टूडेंट्स ने इस्तेमाल किया है, एंड दे आर एंजॉयिंग, दे आर लविंग इट, राइट। मैं इस पे वापस आऊंगा थोड़ी देर में, बट उससे पहले आई वांट टू नो समथिंग। लोगों को अपने करियर में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन में तो मैं ही देख रहा हूँ जो लोग मुझसे लगातार व्हाट्सएप पे या बात कर रहे हैं या मुकेश जी से बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें देखने को आ रहा है। रीजन देखा मैंने कि क्यों अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो मैंने देखा 95% जो रीजन थे वो करियर के थे, 5% इमोशनल थे रीजन, उसके पीछे दूसरे रीजन थे। आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, वॉट इज इक्वल टू मनी? आपको जो पैसा मिलता है वो किस चीज के लिए बदले मिलता है? प्लीज लेट मी नो इन चैट, प्लीज लेट मी नो। वो डायरेक्ट मेरे पास ही आएंगे, आपको नहीं दिखेंगे, पर प्लीज लेट मी नो किस चीज के बदले आपको, नॉलेज के बदले पैसा मिलता है, परफॉर्मेंस के बदले मिलता है, वर्क के बदले, नॉलेज के बदले, नॉलेज के बदले स्किल के बदले, वर्क के बदले टाइम के बदले, एक्सपीरियंस के बदले, ओके, स्किल, वर्क के बदले मिलता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी के आंसर्स अच्छे हैं, आप सभी के आंसर्स सही हैं, मेरा मानना कुछ और है। इट्स एब्सोल्युटली राइट, लेकिन मेरा मानना है कि आपको जो पैसा मिलता है वो रिजल्ट के बदले मिलता है। अगर आपको जिंदगी में आपके समय के लिए पैसा मिल रहा है, you'll die poor, सॉरी बट दैट्स द रियलिटी। एक जो लेबर होता है ना, वो अपने घंटे बेचता है एंड देन वो अर्न करता है, बट उसमें भी वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है कुछ ना कुछ। एक जो मैसन है, जो राजमिस्त्री है, वो भी कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसका पैसा। एक आर्किटेक्ट है, वो कम घंटे आता है बट वो ज्यादा पैसे लेके जाता है। आप सेल्स संभाल रहे हैं कंपनी में, आप रिपोर्ट कर रहे हैं, आप सुपरवाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट यू आर गेटिंग मनी बिकॉज ऑफ योर रिजल्ट्स।
एक्चुअली लोगों को बहुत बार ये पता नहीं होता है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। अगर आप वर्क लाइफ में 10x ग्रोथ पाना चाहते हैं तो आपको दो तीन चीजें समझनी होंगी। पहला, तीन बड़ी वीकनेस मैंने देखी लोगों के अंदर। पहली वीकनेस, लोगों के पास रिक्वायर्ड सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉफ्ट स्किल्स। अगर आप रिसर्च करें, गूगल पे डालें रिक्वायर्ड सॉफ्ट स्किल्स फॉर ग्रोथ इन करियर, 20 सॉफ्ट स्किल्स के आसपास की लिस्ट आएगी। उसमें से आपके करियर में 4-5 चाहिए आपको, जो आपको वो ग्रोथ दिला सकते हैं जो आपने सोचा नहीं होगा, राइट। देन कम्स कॉन्फिडेंस। बहुत लोगों में टैलेंट बहुत है, लेकिन जब नंबर आएगा ना वो दिखा नहीं पाएंगे, एन मौके पे चूक जाएंगे, चाहे वो इंटरव्यू के दौरान हो, बॉस के सामने बात करनी हो, डील क्लोज करनी हो। थर्ड कम्स पुअर इंग्लिश। बहुत सारे लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, और मार्केट में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपकी जो इंग्लिश है वो भाषा नहीं है। दैट्स अ टैलेंट, दैट्स अ स्किल, इंडिया के अंदर स्पेशली। मेरे हिसाब से सुपर करियर बनाने का एक फॉर्मूला है, और ये मुझे बहुत बाद में समझ में आया। जब मैंने कंपनीज स्टार्ट की, बहुत सारे लोगों को हायर किया, तब मैंने देखा कि मैं कैसे लोगों को प्रमोट कर रहा हूँ और जनता कैसे करती है। बहुत सारे लोगों के टच में आया एंड आई लर्न दिस। नंबर 1, सॉफ्ट स्किल्स, रिक्वायर्ड सॉफ्ट स्किल्स। नंबर 2, फ्लुएंट इंग्लिश। नंबर 3, आपका खुद का इनर टॉक जो है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है। ध्यान है, रॉबर्ट और नीला आर्मस्ट्रांग, उनका अपनी एक हीरो फीलिंग है, कौन अपने आप को कैसे देखता है। यदि आप ये तीन चीजें कर लेते हैं, you will go very fast in life. Let me show you something today. आप में से प्रोबेबली बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नेक्स्ट जॉब चाहते होंगे, राइट। थैंक यू चंदन। कई सारे लोग ऐसे होंगे जो जॉब चाहते होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो प्रमोशन चाहते होंगे, राइट। मैं कुछ पूछने वाला हूं आपसे। एक जो पानी की बॉटल है वो कितने की आती है? लेट मी नो इन चैट, एक पानी की बॉटल कितने की आती है? 20 रुपए की, ओके। 20 रुपीज, 20 रुपीज, 20 रुपीज, 20 रुपीज, 15 रुपीज, 10 रुपीज, 30 रुपीज, 20 रुपीज, 15 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज फॉर 1 लीटर, 4 रुपए, 4 रुपए की आती है, ओके। सबके अलग अलग रिप्लाईज हैं यहाँ पे, 10, 20, 30 रुपए का हम बता रहे हैं। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, प्लीज लेट मी नो वन थिंग। 20 रुपए की आती, चलिए मान लिया हमने 20-30 रुपए की आती। अब यही पानी की बोतल में एक रेस्टोरेंट में जाके लूं, तो क्या मुझे वो 20 रुपए की मिलेगी? नो, शायद 50-60 रुपीज की मिलेगी। यही पानी की बॉटल मैं 5 स्टार होटल में लूं, 400-500 रुपीज की मिलेगी। आप बर्गर खाने जाइए, एक ठेले पे 20 रुपए 30 रुपए का मिल जाएगा। आप मैकडी में जाइए, 70-80 रुपीज, 200 रुपीज का चला जाएगा। आप 5 स्टार में जाइए, 500 रुपीज का जाएगा। बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं ना, 40-50 साल के हो जाते हैं, वो मुझसे आके कई बार ये कहते हैं, अरे अशोक सर क्या जॉब इंटरव्यूज की, चार चार इंटरव्यूज मैंने निकाले हैं। प्रभु, आपका टैलेंट यहाँ था, आपने यहाँ वाले निकाले। तो डोंट थिंक कि अगर मैं कर रहा हूं तो आई एम सुपर बॉस। बेसिकली अगर आपको टैलेंट जितना है उतने की कर रहे हो आप, देन यू आर स्किल्ड। वरना रोटी रोटी तो सबको मिलने वाली है। लेट मी टेल यू, मैं एक जगह संबरी एयरपोर्ट पे 50 रुपए में मिलती है आरएनसेस, ओके। एक व्यक्ति ने यू नो हमारा एक प्रोग्राम ज्वाइन किया, दूसरा एक प्रोग्राम था मतलब। सो ही आस्क्ड मी वन थिंग, इंटरव्यू स्किल्स का एक प्रोग्राम चल रहा था। ही आस्क्ड मी समथिंग एंड ही सेड कि अशोक सर, मैंने एमबीए किया, उन्होंने बहुत अच्छे कॉलेज से एक्चुअली, और जब कंपनी प्लेसमेंट हुआ तो एक बहुत अच्छा बैंक उनके यहाँ पे आया फॉर अ गुड पोस्ट, 10 लाख रुपीज का पैकेज था। एंड उन्होंने पूरा अच्छा अपनी तरह से इंटरव्यू दिया, बट ही वाज रिजेक्टेड। देन वो दूसरे में गए, दूसरा बैंक आया कॉलेज के अंदर, 7-8 लाख रुपीज का पैकेज था। एंड इज देयर एनी अदर कोर्स रिगार्डिंग प्रोनाउंसिएशन? धीरज जी बात करेंगे थोड़ी देर में इसके बारे में। ही वाज रिजेक्टेड। तीसरा बैंक आया, आई बिलीव इट वाज एचडीएफसी और समथिंग, 5 लाख का पैकेज था एंड ही वाज सिलेक्टेड। ही सेड टू मी कि अशोक सर, मैं वही था, वही उनके क्वेश्चन थे, वही मेरे आंसर थे, वही मैं था, पर मैं पहले बैंक में रिजेक्ट हुआ, दूसरे बैंक में रिजेक्ट हुआ, तीसरे में मेरी जॉब क्यों लग गई जबकि मेरे आंसर सेम थे? या तो मैं तीनों में सिलेक्ट होता है, मैं तीनों में रिजेक्ट होता। तब तक मैं कंपनी चला रहा था और मैं समझ सकता था, पहले शायद मैं नहीं समझता ट्रेनिंग करने के बावजूद भी। देन आई आंसर्ड हिम वन थिंग, जो मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ, जो भी लोग करियर में हैं अपने। एक्चुअली सी इट दिस वे, अगर आप किसी ऐसी फील्ड में जा रहे हैं जहां पे कुछ प्रोडक्शन होता है, आप प्रोडक्शन में शामिल हैं, तो देखिए उस प्रोडक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो भी आपका पैकेज है, उससे 10 से 12 गुना का अगर आप रेवेन्यू निकाल के दे सकते हैं अपने काम से,
तो आप हायर हो जाएंगे। यदि सर्विस इंडस्ट्री है तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर 8 से 10 गुना चलता है, तो आप 10 गुना मान लीजिए। तो जब 10 लाख की कंपनी आई तो वो चाहती थी क्या ये व्यक्ति 1 करोड़ का काम करके देगा साल में? आपका टैलेंट, आपकी स्किल, आपका सब कुछ वहां यहाँ रिजेक्टेड। 8 के हिसाब से 80 रिजेक्टेड, 5 के हिसाब से 50 जो आप थे, एंड दे हायर्ड यू। पीपल डोंट अंडरस्टैंड, पीपल थिंक मैं आंसर दूंगा ये वाला एंड पीपल विल बी फूल। नो, दैट्स नॉट द रियलिटी। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। लेट मी शो यू समथिंग। जब हम अपनी कंपनी में इंटरव्यू लेते हैं तो हर, आई एम डेलिबरेटली शोइंग यू, ये अंग्रेजी से लेना देना नहीं है, मैं शायद इसकी बात भी नहीं करता, लेकिन जब मैंने देखा ना रीजंस लोगों के, तो मैंने रीजंस में देखा उनको करियर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मिसगाइडेड है। उन्हें किसी ने पीस ऑफ पजल का आधा हिस्सा दिखाया है। आई वांट टू शो यू द कंप्लीट हिस्सा सो दैट यू गो विद द क्लैरिटी, राइट? यू पेड मी मनी फॉर द इंग्लिश बट आई एम शेयरिंग दिस। जब हम इंटरव्यूज लेते हैं अपनी कंपनी के अंदर, अच्छी कंपनीज में सब में ये होता है, कैंडिडेट को ये पता नहीं होता। तो व्हाट वी डू एक्चुअली, हमें मालूम है कि इस पोस्ट के लिए स्किल्स क्या चाहिए, ये हमारे सेल्स पर्सन के लिए है। नॉलेज क्या चाहिए, उसकी सेल्फ इमेज कैसी हो, उसके ट्रेट्स कैसे हो और उसके मोटिव्स क्या हो, राइट? क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे डिपार्टमेंट में बदल जाएगा ये सब। जब मेरे पास ये होता है और मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं ये मैच करता चलता हूँ, एंड देन मुझे पता पड़ जाता है मुझे क्या निकाल के दे सकता है और कितना सैलरी में ऑफर कर सकता हूँ। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब एक चीज मुझे बताइए, अगर आपको जॉब चाहिए और आपकी पोस्ट से संबंधित आपके पास ये हो, तो क्या आपके पास आसानी नहीं होगी अपने आप को प्रूव करने में? बिकॉज अभी तो अंधेरे में जाके तीर चला रहा है। उसने कुछ पूछा, हमने कुछ जवाब दे दिया, इंग्लिश कॉन्फिडेंस। हाँ, अच्छा चलो प्रमोशन चाहिए, लेट मी मेक इट इजी फॉर यू। जितने लोग मिड सेगमेंट में है ना, हमें प्रमोशन चाहिए, मैं अभी सेल्स में हूँ और मुझे टीएल बनना है फॉर एग्जाम्पल। तो क्या सेल्स वाले व्यक्ति की टीएल वाले की सेम स्किल्स होती हैं, सेम नॉलेज होती है, सेम पास्ट का रिजल्ट होता है? नहीं। यदि किसी ने कहा है ये बात कि मैं जिस भी पोस्ट पे हूँ उससे 2 पोस्ट ऊपर कि मैं ये लिस्ट बना लूं और अगले 6 मंथ्स में मैं ये कर लूं, आपको प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि हमारे यहाँ कंपनी में तो रूल है, हम अपने लोगों को ये बनवाते हैं। हम उनसे कहते हैं राइट व्हाट यू वांट, राइट दीज स्किल्स जो आपको नेक्स्ट में चाहिए। टील बनना है ना, 6 महीने बाद परमिशन होगा, शो मी दिस रिजल्ट, शो मी दिस स्किल, शो मी दिस ट्रेड एंड आई विल प्रमोट यू, यू हैव 6 मंथ्स टू डू इट। तो हमारे यहाँ सारे जो व्यक्ति होते हैं, दे आर लर्निंग एंड दे आर वर्किंग हार्ड, रियली वर्किंग वेरी हार्ड। बिकॉज हमारे यहाँ एक सिस्टम है, लोगों के पास नहीं होता, कल्चर नहीं होता कई बार कंपनी में, क्योंकि खराब कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो वहां केवल बुराइयां चल रही होती हैं। यू नीड टू हैव दिस पेज विद यू, वेदर आप 30,000 की जॉब कर रहे हो कि 3 लाख की जॉब कर रहे हो, आपने भी एमबीए कंप्लीट किया, कुछ भी किया है, टू गेट द नेक्स्ट जॉब और नेक्स्ट प्रमोशन, अगर आपके पास ये हो जाए, लाइफ विल बी सुपर सुपर इजी। नाउ लेट्स कम बैक टू दिस, व्हाट आई वाज डिस्कसिंग एक्चुअली विद यू। यदि आप ये कर लेते हैं, नंबर 1, यदि आप ये कर लेते हैं, पहला, आप फ्लुएंट इंग्लिश में बोल रहे होते हैं। नंबर 2, आपके पास रिक्वायर्ड सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। नंबर 3, आपकी जो राइटिंग की स्किल्स हैं या हीरो फीलिंग है, आपकी टोटल पर्सनैलिटी है, वो शानदार होती है। लाइफ में आप 10x ग्रोथ अचीव करेंगे। अदरवाइज अपने टैलेंट के मुकाबले हमेशा अंडरपेड होंगे, वॉट एवर पोजिशन यू आर एट, राइट? नाउ मेरी जिम्मेदारी खत्म होती है यहाँ। हम 3 बार अभी और मिलेंगे लाइफ उसमें, अलग अलग डेज पे, बट मेरी यहाँ जिम्मेदारी खत्म होती है। I'll come back to that rule later on, but मेरी यहाँ जिम्मेदारी खत्म होती है। आपने जो 199 पे किया वो 60 डेज के प्रोग्राम के लिए था, और 60 डेज के प्रोग्राम आपको ईमेल पे मिल रहा है और ये एज इट इज मिलता रहेगा। इसके अंदर लर्न, इसके अंदर प्रैक्टिस, इसके अंदर रिव्यू, इसके अंदर इंप्लीमेंट आपको करना है। कोई भी इशू होगा उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है जो 60 डेज और इवन उसके बाद भी आपको मदद करेगा। लेकिन आज आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। धीरज जी, आई आंसर दूसरे कोर्स जो आप पूछ रहे हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप ये सारी चीजें इंग्लिश में LPRI खुद कर लें, पर्सनैलिटी में, सॉफ्ट स्किल्स में आप खुद कर लें। दूसरा ऑप्शन है कि हम इस बात की जिम्मेदारी लें कि लर्न, प्रैक्टिस, रिव्यू, इंप्लीमेंट हम और हमारे टीचर्स कराएंगे आपको, राइट? Number 2, how can we contact? I'll tell you. I'll tell you, Shahrukh ji. Don't worry about it. So, आपका कोर्स कितने का? Just hold on. I'll tell you. So, number 1 is पहला ऑप्शन कि आप इसे खुद कर लें। दूसरा ऑप्शन कि ये तीनों चीजें इंग्लिश भी कंप्लीट,
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपकी सॉफ्ट स्किल्स, एवरीथिंग हमारी टीम और मैं आपको कराएं। वी वर्क विद यू, लाइव हम आपको ये कराना स्टार्ट करें। आपके पास दो ऑप्शन है। यदि आप कहते हैं ऑप्शन नंबर 1, तो इंग्लिश का कोर्स तो मैं आपको बेसिक से इंटरमीडिएट तक दे चुका हूँ। हाँ, आपको मेहनत उसके लिए जरूर खुद करनी होगी, राइट। इसके अंदर एडवांस वर्जन तक हम करने वाले हैं। आफ्टर 60 डेज मैं और पेड कर दूंगा। ओके आरएन जी, जस्ट वेट, इट्स नॉट अबाउट मनी, राइट। प्लीज लेट मी नो योर आंसर। ऑप्शन नंबर 1 आप खुद कर लेंगे, ऑल ऑफ दैट। ऑप्शन नंबर 2, हम और हमारी टीम आपको इंग्लिश लाइव कराए, बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे बात, मैं नहीं कह रहा हूँ कोर्स बेकार है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, बट हम मंडेन हो जाते हैं, मंडेन लाइफ में लग जाते हैं, कल कर लूंगा, आज कर लूंगा, कोई बात करने वाला नहीं होता, और फिर हम उसको उतना सिंसियरली नहीं कर रहे होते हैं, वो छूट जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आप खुद कर लेंगे, इंग्लिश भी, सॉफ्ट स्किल्स भी, एंड आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी काम भी। दूसरा, हम आपको सारी चीजें यहाँ पे कराएं, ऑप्शन नंबर 2। प्लीज लेट मी नो इन चैट यदि आप कहते हैं ऑप्शन नंबर 1 हम इसे यहाँ खत्म करेंगे, वी विल से गुड बाय, हम 3 बार दोबारा जरूर मिलेंगे। यदि आप कहते हैं ऑप्शन नंबर 2, जो कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2, 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 ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑल ऑप्शन नंबर 2। आई नीड ट्यूटर, ओके, वो थोड़ा फास्ट निकल गया, पूरा नहीं पढ़ पाया। आई नीड ट्यूटर क्या था, ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, दैट्स द ऑप्शन, यू कैन डिसाइड वेदर टू बाय और नॉट टू बाय। वो आप डिसाइड कर सकते हैं, खरीदना है नहीं खरीदना है। आप, ऑफ कोर्स नॉट एवरी कोर्स इज फॉर एवरीवन, राइट। सो लेट मी टेल यू, राइट, लेट मी टेल यू कि क्या है एंड कितना खर्चा आएगा एंड एवरीथिंग, राइट। सो प्लीज होल्ड ऑन फॉर द क्वेश्चंस। एट द एंड में आपको क्वेश्चंस के आंसर करने जा रहा हूं, डोंट वरी अबाउट इट। सो लेट मी टेल यू, एक हमारा कोर्स है वीआईपी इंटेंसिव इंग्लिश बंडल। बंडल क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कोर्सेज क्लब होके आते हैं, और ये इंटेंसिव है क्योंकि ये लाइव है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिक नहीं, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, तीनों। इसके अंदर सारी ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, एवरीथिंग जो आता है ग्रामर के अंदर, वो हम यहाँ कवर करेंगे लाइव, राइट। हम आपको इंग्लिश में सोचने वाला काम कराएंगे, जो कि जनरली लोग ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करेंगे, आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करेंगे, सारे टीपीआर सिस्टम मेथड हम और हमारे टीचर्स आपसे कराएंगे। इट मींस आपकी इंग्लिश के जो लेवल को यहाँ से यहाँ लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू हम आपको ये कराना स्टार्ट करेंगे। अब मैं वापस आता हूँ इस फार्मूले के ऊपर जो हमने बात की थी। आप खुद भी कर सकते हैं, यू आर फ्री, नो डाउट एट ऑल, नॉट ट्राइंग टू सेल यू, बट टेलिंग यू द डिफरेंस। इसके अंदर जो होने वाला है, एल जो आप करेंगे, इस बार हम आपको एक एलएमएस देंगे। एलएमएस क्या होगा, एक ही बार ईमेल डालिए, सारे के सारे लेसन आपके पास होंगे। सारे करने नहीं है एक दिन में, तो आप लर्न करेंगे एक दिन पे। दूसरे दिन में जो प्रैक्टिस होगी, तो जूम पे आएंगे, हमारे टीचर्स आपसे बुलवाएंगे ब्रेकआउट रूम में, जिस तरीके से मैंने आपसे कराया वो हमारे टीचर्स कराएंगे। देन हम रिव्यू करेंगे, डेली बेसिस पे हम देखेंगे आप क्या गलतियां कर रहे हैं। तो टीचर माइट से कि आप फर्स्ट फॉर्म गलत लगाते हो, थर्ड फॉर्म गलत लगाते हो, टाइम वर्ड गलत यूज कर लेते हो, आपकी टोन अच्छी नहीं है यहाँ पे, इसका प्रोनाउंसिएशन आपको ऐसे सुधारना चाहिए, फ्लो करने के लिए आप एक्स्ट्रा साउंड लगा रहे हो, वॉट एवर, दे विल गिव यू सम, डेली बेसिस पे आपको रिव्यूज मिलना स्टार्ट होंगे। इम्प्लीमेंट, जो रियल वर्ल्ड में आप करने वाले हो ना, थोड़ा पेनफुल है, जहां लोग हंसी उड़ा सकते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं होगी। मैं आपको एक इम्प्लीमेंटेशन सेंटर दूंगा लाइव, जहाँ पे आप प्रेजेंटेशन भी देंगे, आप ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे, आपके फेक जो मतलब इंटरव्यूज भी होंगे, फेक मींस लाइक रोल प्लेस होंगे इंटरव्यूज के, सो दैट आप जिंदगी का पहला अनुभव यहाँ कर लें रियल होने से पहले। ऑल ऑफ दिस कोर्स को 3 भागों में बांटा गया है, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड। ये केवल बेसिक नहीं है, बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स है। बेसिक कोर्स करेंगे पहले महीने में, अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप इंटरमीडिएट में नहीं जाते, पास हो गए तो इंटरमीडिएट में जाएंगे, फेल हो गए तो हम पहला लेवल फ्री कराएंगे आपको दोबारा से, क्योंकि हर किसी का लेवल अलग अलग है यहाँ पे। तो कोई 1.5 महीना भी ले सकता है एक लेवल कंप्लीट होने में, हो सकता है कोई पहले भी कर ले। देन इंटरमीडिएट कराएंगे, उसके बाद टेस्ट लेंगे, पास हो गए तो एडवांस्ड में, नहीं तो इंटरमीडिएट दोबारा कराएंगे फॉर फ्री, वी विल नॉट चार्ज। तो ये कोर्स 3 से 6 महीने चल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्पीड कितनी है, आप कितने तरीके से सीख रहे हो, क्योंकि सबकी स्पीड अलग होने वाली है यहाँ, राइट। देन कम्स कुछ बोनसेस हैं, यदि कोई व्यक्ति वास्तविकता में मेरी तरह है जिसको बहुत भूख है इंग्लिश की, तो कुछ बोनसेस फ्री देने वाले हैं। जैसे ग्रामर मास्टरी प्रोग्राम देंगे, अनलिमिटेड ग्रामर उसके अंदर मिलेगी आपको, एडवांस्ड वोकैबुलरी मिलेगी, फ्लुएंसी स्टाइल बिल्डर मिलेगा, कुछ डाउट सेशंस रखेंगे टाइम टू टाइम, सो दैट हम आपको मदद कर सकें।
इस कोर्स की फी होती है 8,999 रुपीज, पर अभी हम आपसे ये चार्ज नहीं कर रहे हैं। विल बी चार्जिंग 4,499 रुपीज, 4,499 रुपए। आई डोंट नो कितनों को ज्यादा लगती है, कितनों को कम लगती है, बट दैट्स द फी फॉर दिस कोर्स। कुछ गिफ्ट्स है मेरे पास, क्योंकि जो सुपर करियर ट्रायंगल है वो तीनों पूरा करना चाहता हूं मैं। तो एक कोर्स है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, वो आपको देंगे, जिसमें आपकी जो सेल्फ टॉक है, खुद से जो बात करते हैं, वो खुद ही की नेगेटिव बात करके निकाल देते हैं, विल इम्प्रूव दैट। साथ में आपकी इंटरनल पर्सनैलिटी और आपकी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी दोनों पे काम करेंगे। ग्रूमिंग मैंने अलग लिख दिया है, हालांकि वो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी का बात है। आप लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं? कुछ लोग वो होते हैं जहां बैठते हैं वहां इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात भी करोगे तो अच्छा नहीं लगता। तो आप कैसे वो पर्सनैलिटी बन सकते हैं कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए? 1,000 रुपीज का ये कोर्स होता है, बट विल गिव यू एब्सोल्युटली फ्री, राइट? देन कम्स पब्लिक स्पीकिंग। आप एक व्यक्ति में बात करो, 1,000 व्यक्तियों में बात करो, आप स्टेज से बात करो, आप छोटे से केबिन में बात करो, आप हिंदी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश किसी भी भाषा में बात करो, उसका एक तरीका है। आर्ट एंड साइंस क्या होती है? क्राफ्ट करने की स्पीच। ऐसा कैसे बोलें कि लोग खड़े होकर आपके लिए तालियां बजाएं। माइक्रो मैक्रो प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं? और यदि आप किसी भी वजह से सेल्स में हैं, जो कि सब होंगे, जो सेल्स नहीं कर रहे हैं वो भी सेल्स कर रहे हैं, तो 3 सीक्रेट्स क्या होते हैं क्लोज करने के लिए, ये भी एब्सोल्युटली फ्री देने वाले हैं। लास्ट कम्स जॉब इंटरव्यू स्किल्स। आई लव दिस। सो अगर आपने ऑलरेडी आप जॉब कर भी रहे हैं, स्टिल ये आपको मदद करेगा व्हेन यू हैव नेक्स्ट इंटरव्यू, वेदर इन हाउस और आउट हाउस। वैकेंसीज जो होती हैं वो 10% भी एडवर्टाइज नहीं होती, तो हम ढूंढते कैसे हैं उन वैकेंसीज को, राइट? सो बेसिक्स ऑफ लिंक्डइन क्या होते हैं, इंटरव्यू से पहले क्या करें, बीच में क्या करें, लास्ट में आप क्या करें। देन रेज्यूमे जो होते हैं वो विनिंग रेज्यूमे कैसे लिखे जाते हैं, गोल्डन आंसर्स कैसे बनाए जाते हैं। सी, बहुत सारे लोगों को तो नेगोशिएट ही करना नहीं आता। मतलब मेरे, अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरे एक पार्टिसिपेंट हैं, उनकी जेपी में जॉब लगी, जेपी सीमेंट में। एमपी में उनकी पोस्टिंग हुई, यूपी से हैं हालांकि वो। जब वो वहां गए तो ही टोल्ड मी लेटर ऑन, उन्होंने ये वाला कोर्स नहीं किया हुआ था, ही सेड कि सर, व्हेन ही वाज डूइंग दिस, ही टोल्ड मी कि सर अगर मैंने ये पहले कर लिया होता तो जिंदगी कुछ और होती। जब मैं यहाँ पे आया तो मेरी ही पोस्ट में, मेरी ही रेजिग्नेशन पे और लोग थे, लेकिन ज्यादा सैलरी में, मेरी कम सैलरी थी। गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं होता, पर प्राइवेट में होता है, राइट? सो ही सेड आई डिडंट नो हाउ टू नेगोशिएट। तो आप नेगोशिएट कैसे करते हैं, यू शुड नो दैट। सारे कोर्स 12,999 के, बट अभी हम चार्ज कर रहे हैं 4,499। लास्ट विच आई लव इज मास्टरमाइंड सेशन। अब ये मास्टरमाइंड सेशन क्या है? आपने पीडी सीखा, आपने पब्लिक स्पीकिंग सीखी, प्रेजेंटेशन सीखी, जॉब इंटरव्यू स्किल्स सीखे, करोगे कहाँ ये? तो एवरी, मतलब हम महीने में 2 संडे ऑफिशियल हैं, अभी हम चारों संडे मिलते हैं, तो मैं आता हूँ 4 संडेज के लिए। एक लेवल पूरा हो जाएगा जब आप आएंगे, और संडे में हम 1.5 घंटा बिताने वाले हैं, जिसमें हम प्रेजेंटेशन देते हैं, स्टोरीज सुनाते हैं, जोक सुनाते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, अलग अलग राउंड्स होते हैं। और ये सब वो लोग हैं जो जो अलग अलग डिफरेंट पार्ट से आते हैं। तो इमेजिन कि आप 1 साल तक मेरे साथ आप ये प्रोग्राम में भाग ले रहे हो, इंग्लिश तो सीख ही रहे हो टीचर्स के साथ साथ, बट इमेजिन दैट एवरी संडे और एवरी सेकंड संडे, सपोज लाइक 30-32 संडे भी केवल आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो। इंग्लिश तो इम्प्रूव हो ही रही है, बट द लेवल ऑफ योर कम्युनिकेशन विल गो। दैट्स, आई लव दिस। मैं इसको खुद कंडक्ट करता हूँ इसीलिए। एंड दिस कम्स विद लाइफ टाइम एक्सेस। जितनी भी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी वो लाइफ टाइम एक्सेस होंगी, लाइव जो होंगी वो 3 to 6 months इंग्लिश और 1 year मास्टरमाइंड सेशन, राइट? अभी मेरे पास एक सरप्राइज और है, दैट इज, जितने भी लोग सीरियस हैं, जो सीखना चाहते, जो नहीं सीखना चाहते हैं, दैट्स ऑल ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट जो वास्तविकता में सीखना चाहता है, आई रियली वांट टू हेल्प यू। सो 24 आवर्स के लिए हम एक ऑफर दे रहे हैं आपको, दैट इज कि यदि आप कल शाम 8 बजे से पहले एडमिशन लेते हैं, तो आपकी फी 4,499 भी नहीं होगी, आपकी फी होगी केवल 3,499। इस 3,499 में यू विल गेट स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम एंटायर, लाइव क्लासेस के साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जॉब इंटरव्यू स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स और कंप्लीट 1 साल का मास्टरमाइंड सेशन एट रेट ऑफ 3,499, जितने लोग कल तक करेंगे। यू नो दैट जब मैंने 199 रुपीज चार्ज किया, आई ओवर डिलीवर्ड, एंड दैट्स माई फिलोसफी। सो आई एम गोइंग टू ओवर डिलीवर इन दिस ऑल्सो। हाँ, वो अपने आप में अच्छा कोर्स है, नो डाउट। जो आपने खरीदा है वो आपको मिला है, एक ई बुक नहीं मिली है, जो मैं कल शाम को 9 बजे शेयर करूंगा ग्रुप में, यू विल गेट दैट। तो एवरीथिंग you you know made payment for that program,
You have received, you will be receiving every help from us, right? There is no compulsion to buy. But अगर आप चाहते हैं improve करना हमारे साथ, then I think this is the best opportunity, because mundane life नहीं होगा उस केस में यहाँ पे हमारे टीचर्स आपको मदद करेंगे एक एक चीज कराने में, राइट? अभी मैं आपको सवाल आमंत्रित करूंगा, लेकिन उससे पहले बैच के टाइमिंग क्या होता है? सो वैसे तो हमारे यहाँ 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक बैचेस होते हैं, लेकिन 8 PM वाले स्लॉट ऑलरेडी बुक हैं हमारे सारे टीचर्स के साथ में। तो अभी आपको 5 PM मिल जाएगा, आपको 7 PM मिल जाएगा और आपको 9 PM मिल जाएगा। सबको अलग अलग बैच शूट करेगा। वर्किंग लोगों को 9 PM शूट करेगा, कुछ लोग जल्दी आ जाते हैं उनको 7 PM, स्टूडेंट 5 PM में आ सकते हैं, राइट? सो I'll take all the questions now. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट? जो भी आपके सवाल हैं आप लिख सकते हैं, मैं 1 बाय 1 आंसर करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो फी पेमेंट कैसे करनी है? फी पेमेंट कैसे करनी है, आपको अभी एक मैसेज आएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, पूरा मैसेज पढ़ लीजिएगा। उसमें बैंक डिटेल्स होंगी और बैंक डिटेल्स के साथ साथ गूगल पे, फोन पे का नंबर होगा। आप वहां से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप हमें स्क्रीनशॉट भेजेंगे, हम आपको एडमिशन फॉर्म भेज देंगे। बैच का टाइम क्या होगा? बैच का टाइम जो होगा वो 5 बजे, 7 बजे और 9 बजे में से एक आप चूज कर लीजिएगा, बट इन 2 टाइम्स। अच्छा, आप शायद फी के लिए कह रहे हैं अमोल जी। फी आपको एक ही बार में देनी होगी। यदि किसी व्यक्ति की सैलरी मिलने में 1-2 दिन का समय है तो आप टीम से बात कर सकते हैं, वो आपको 1-2 दिन का समय दे देंगे, अदरवाइज इट इज वन टाइम पेमेंट। आई एम इन जॉब रवि जी, मैं समझ नहीं पाया इसका आंसर, आप क्या कहना चाह रहे हैं, राइट? भूषण जी, वर वी पेड सर, मैं समझ नहीं पाया भूषण जी आपका सवाल। कैन आई पे द फी पार्टली? नो श्वेता जी, आपको एक ही बार में पे करना होगा, राइट? 9 PM का बैच शूट करता है, हाँ 9 PM कर सकते हैं आप भी। राजीव जी, अमोल जी, दोनों। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पर टीचर? देखिए मैं आपको बता दूं, जनरली जो क्लासेस हैं वो 20 से 50 स्टूडेंट्स के बीच में होती है, नॉट लाइक 200 जैसे यहाँ पे होते हैं, बट उसका फर्क नहीं पड़ेगा। When people have paid 3,499, they start their camera all the time. You will not find single person जिसका कैमरा ऑन नहीं होगा वहां पे, नंबर 1, राइट? अनदर थिंग, हम ब्रेकआउट रूम में करते हैं तो उसका फर्क भी नहीं पड़ेगा कि 50 है कि 20 है, इट विल बी ऑल सेम। टीचिंग मटेरियल सारा हम LMS पे आपको ऑलरेडी दे देंगे, जो कितनी ही बार किसी भी समय आप देख सकते हैं। तो वी हैव डिजाइन्ड इन सच ए वे कि यू विल नॉट हैव द इशू। इज देयर एनी मॉर्निंग सेशन? अनिल दुबे जी, अभी नहीं है, हालांकि काफी समय से हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट मॉर्निंग की आ रही है, पर अभी हमारे पास मॉर्निंग का सेशन नहीं है। कैन वी बाय ओनली बुक which is important to learn some basic grammar, pronunciation and vocab? Yes ललिता जी, आप बुक खरीद सकते हैं, और केवल हमारी नहीं, वर्ल्ड में आपको बहुत सारी बुक मिल जाएंगी। बट लेट मी टेल यू समथिंग, ये बुक नहीं थी जिनके बॉक्स दिखे थे, ये कोर्सेज थे। विद माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, बुक से नहीं आएगी। एक्चुअली द इशू इज ओनली थिंग, बुक हो, वीडियो से तो आपको बहुत मदद मिलती है, बट जो बुक होती है ना, दैट डज नॉट से कि आपको करना क्या है। तो यू गेट टू नो द ग्रामर नॉलेज, और फिर उसी में हम फंस जाते हैं। तो डोंट गो इनटू इट, राइट? हाउ वी चूज बैच टाइम? बैच टाइम आप चूज करेंगे जो आपको अच्छा लगेगा, 5, 7, 9 में से कोई सा भी चूज कर लीजिएगा जी ठाकुर जी। ड्यूरेशन ऑफ डेली क्लास 45 मिनट्स ऑफिशियल है, लेकिन 1 घंटे तक क्लास चलती है, आपको 1 घंटा निकालना पड़ेगा, लगभग 55 मिनट्स। कैन माई फ्रेंड ज्वाइन दिस कोर्स? यस, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, सेम फी उनको लगेगी। सर प्रोनाउंसिएशन PPT शो अगेन, हम आप उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे ग्रुप में कल, राइट, रात को 9 बजे के बाद। बट अलाउ टू, मैं समझा नहीं पाया अमोल जी आप क्या कह रहे हैं, बट अलाउ टू का मतलब वेयर टू गेट PDF फॉर 199 कोर्स? ओके, जो PDF है वो एवरी सेकंड लेसन में है, तो लेसन नंबर 2, 4, 6, वही तो मैंने बताया था प्रैक्टिस है, उसकी PDF आपको वही मिल जाएगी। 2 ई बुक हमने प्रॉमिस की हैं, एक है ई बुक पिक बुक, वो टेलीग्राम ग्रुप पे है, एक है वोकैब ई बुक जो कल मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में 9 बजे भेजूंगा, राइट? You are right, sir, but what about economically background people? Manish ji, let me throw a truth bomb. You may not like it, but this is a truth bomb. I'm not talking about you or anyone in the group, but general people. Actually, आप लोगों के पास जाएंगे ना, तो people have good mobile phone. Good move. Even a rickshaw puller, 20,000 रुपए का मोबाइल फोन, 10,000 का मोबाइल फोन। कपड़े we spend lot of money, रेस्टोरेंट जाना अच्छा, बट जिस 4 इंच की चीज से पूरी जिंदगी चलने वाली है, we don't invest money in that. If you see it, economical people, weak people also buy houses. So for anything you need to invest. हम जितना कम कर सकते थे हमने इसमें किया, but when you see it by by this point of view कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, you will arrange from anywhere, even if you don't have. जितने लोग क्रेडिट कार्ड का लिंक चाहते हैं वो मिल जाएगा, तो क्रेडिट कार्ड से आप इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं। पे टू एस 3499
एंड क्रेडिट कार्ड से आप ये कर सकते हैं। राजीव जी आप कह रहे हैं कि यदि आप अभी ज्वाइन करें और फ्यूचर में अभी पे करें और फ्यूचर में ज्वाइन करें, संभव है। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं जो अभी पे कर देते हैं और फ्यूचर में ज्वाइन करेंगे। 9 PM विल बी परफेक्ट। मिल जाएगा धीरज जी एंड सम आई कुड नॉट रीड द नेम। डेली टाइमिंग कितना रहेगा? 55 मिनट्स तक जाएगा सेशन लगभग, लेकिन 45 मिनट्स ऑफिशियल है, 55 मिनट से पहले खत्म नहीं होता है। कैन आई कंप्लीट दिस वन इन 1 मंथ? नो राजीव जी, नहीं होगा। 1 मंथ में कंप्लीट नहीं होगा। नो लाइज, बिकॉज प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। मॉर्निंग में कोई बैच नहीं है, मॉर्निंग में टीम देख सकती है, सो यू कैन मेक द पेमेंट, बट अगर मॉर्निंग बैच नहीं मिलता है वी विल रिफंड द मनी। अगर हमें लगता है कि कुछ लोग हो गए हैं, वी विल स्टार्ट द मॉर्निंग बैच। अभी मॉर्निंग बैच करंट में नहीं है। मॉर्निंग रिजॉर्ट में 6-7 बजे, बट 10-11 बजे के आसपास वी कैन सी दैट, राइट। सर माय लैंग्वेज उड़िया, यदि आप हिंदी समझते हैं राजकिशोर जी तो इट विल वर्क। सर प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। ललिता जी आप क्वेश्चन साथ में लिख दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे हैं, अभी 51 मैसेजेस बचे हुए हैं और यहाँ पे मुझे पता नहीं आपने ऊपर क्या पूछा है। 9 PM क्लास चलेगा, मिल जाएगा आपको। हम 2 लोग हैं, ओके। अगर आप एक ही घर से 2 लोग हैं तो सेकंड स्टूडेंट की फी पे 50% ऑफ होगा। हस्बैंड वाइफ बहुत बार ज्वाइन करते हैं, भाई 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 बहन ज्वाइन करते हैं, तो पहले स्टूडेंट की 3,500, दूसरे स्टूडेंट की 1750, 7,000 की जगह 5,250। लेकिन अगर मित्र हैं, पड़ोसी हैं, तो अलग अलग फी देनी होगी, राइट। 2 पार्ट प्लीज, नो 2 पार्ट वी कैन नॉट डू इट, लेकिन 2-4-5 दिन का समय चाहिए तो मिल जाएगा आपको। व्हाट टू डू राजकिशोर जी आप कह रहे हैं, आई डोंट नो एक्चुअली राजकिशोर जी, बिकॉज उड़िया में तो आई डोंट नो उड़िया, सो विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, राइट। सर 3 मंथ्स के बाद, आदर्श जी 3 मंथ्स के बाद, देखिए ये बहुत लोगों का सवाल हो सकता है जो आदर्श जी ने पूछा है 3 महीने के बाद क्या है। अगर नहीं आई फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, तो हमें पहले लेवल में पता पड़ जाएगा यू आर वीक, तो हम लेवल 2 फ्री दे रहे हैं, लेवल 1 दोबारा से फ्री दे रहा है, ऐसे ही लेवल 2 लेवल 3 में, इसीलिए 3 मंथ्स के साथ 3 मंथ्स आपको फ्री मिल रहा है, एक तरीके से समझिए, सो दैट वी कैन एश्योर दैट एवरीवन स्पीक्स। I am CA final last group student. I required speak English. जितेंद्र जी, this course is perfect for you. डेली टाइमिंग कितना रहेगा सेशन का, मैं आंसर कर चुका हूँ। एक दिन लाइव चलेगा, एक दिन पोर्टल पे। जो लाइव क्लास चलेगा उसमें 55 मिनट्स का सेशन रहेगा। Literally your words are so powerful, sir. It gives so much positive vibes that I can do anything now. Suman ji, thank you so much. क्लास विल बी सिंगल वन, नो नो 1 by 1 तो पड़ेगा भी नहीं। 1 by 1 में वी डू हैव 1 by 1 क्लासेस, बट वी चार्ज 9,999 रुपीज फॉर 45 मिनट सेशन 3 times a week 1 month मनी, 9,999 रुपीज, राइट। सो विनय जी इट इज नॉट सिंगल, सिंगल कोई चाहता है तो कर सकता है, बट आई डोंट रिकमेंड इट, बिकॉज उसमें आपका रिजल्ट 6 महीने, जो 2 महीने का रिजल्ट है वो 6 महीने में आएगा, बिकॉज यू विल हैव लेस पीपल टू टॉक टू, राइट। Sir, I repeat basic course because missing last 2 sessions. Don't worry about it. जब आप इसमें एनरोल करेंगे तो हमारे टीचर्स आपको ये सब कराएंगे। फुरकान कह रहे हैं लैंग्वेज, मैं समझ नहीं पाया आप क्या कहना चाह रहे हैं। इज एनीवन मॉनिटर अस डेली? यस लीला जी, वहां पे टीचर्स होंगे जो आपसे कराएंगे, जो आपको रिव्यू करेंगे, जो आपको समझाएंगे, बताएंगे, राइट। समय से आपको डाउट क्लासेस भी मिलेंगी इसके अंदर। सो it is this way. There are many questions. 1 hour a day, yes, 55 minutes a day. How many days, sir? 6 दिन क्लासेस चलेंगी आपकी, 3 दिन पोर्टल पे, 3 दिन लाइव। 1 महीने बाद आपकी जो क्लासेस हैं वो यू नो उसमें आ जाएंगी, संडे में भी इनफैक्ट हो जाएगा मास्टरमाइंड सेशन जो है। अमोल जी आप टीम से बात कर लीजिएगा, you'll get 1 number, right? I understand अमोल जी। सर 3 मंथ्स का कंप्लीट कोर्स है, हाँ स्पीकिंग का 3 मंथ्स का है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा मास्टरमाइंड सेशन 1 साल का दे रहा हूँ, क्योंकि जो पब्लिक स्पीकिंग है या पर्सनैलिटी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें समय लगता है। तो वी ट्रेन यू ऑन समथिंग, फिर आप उसे वर्किंग लाइफ में अप्लाई करते हैं, फिर वो केवल सप्ताह में एक ही बार निकालना है। बट टेलीग्राम ग्रुप लिंक मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा आपको, राइट। मैं मैम को बोल दूंगा शेयर दैट लिंक। पेड दिस मनी, ओके। मुझे पता नहीं राजकिशोर जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं पे करेंगे आप, आपको मिल जाएगा। पेटीएम नंबर मिलेगा जी, पेटीएम नंबर मिल जाएगा। आई डिडंट गेट 4 सेशन, जो भी सेशन नहीं मिला हेल्पलाइन नंबर कर लेना। कितने टाइम का कोर्स है ये? 3+ मंथ्स का कोर्स है, राइट। मींस 199 वाला नहीं सीख पाएंगे? नो, 100% सीख पाएंगे आर्यन जी, 199 वाला भी, बट उसमें बेसिक से इंटरमीडिएट तक है। LPRI आपको खुद करना होगा, तो यदि आप तैयार हैं खुद करने के लिए, नो नीड टू बाय दिस, बट इन केस यू कैन अफोर्ड इट, तो हम आपकी जर्नी को बेहद आसान बना देंगे। वो लोग जो मार्केट में हंसने वाले हैं वो सब सच सीन कट जाएगा। यहाँ एक मेंटोर आपके साथ रहने वाला है, यू अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो यदि आप वो कर रहना चाहते हैं, एब्सोल्युटली ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल।
कैन वी स्विच द टाइमिंग ऑफ क्लास? बैच ट्रांसफरेबल है लेकिन डेली चेंज नहीं कर सकते हैं आप। आपको लगता है प्रॉब्लम आ गई, दूसरा दे देंगे। ठीक है मोहम्मद जी। विल यू प्रोवाइड ऑनलाइन क्लासेस? यस, ये ऑनलाइन ही है, रिकॉर्डेड, एक दिन, दूसरे दिन लाइव। तो पहले दिन जब सीख के आप आओगे तो हम प्रैक्टिस कराएंगे, सिखाएंगे नहीं, प्रैक्टिस कराएंगे उस दिन। हाँ, सिखाने वाला काम भी वहाँ थोड़ा बहुत होगा, राइट? रिव्यू होगा वहाँ पे। कैन वी स्विच द टाइमिंग? आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड। हाउ मेनी डेज इन अ वीक? 6 days in a week, 3 days पोर्टल, 3 days लाइव। 9 PM इज सुटेबल फॉर मी, धनंजय जी 9 PM मिल जाएगा। कितने टाइम का कोर्स है? 3 months। थैंक यू वेरी मच। टाइमिंग का वीडियो मिलेगा, ट्रेनिंग का वीडियो मिलेगा। जो भी हम आपको देने वाले हैं एक्चुअली वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, उस सब की रिकॉर्डिंग हम आपको मिलेंगे। इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, टीम से बात कर लीजिएगा। मैं अलाउड नहीं हूँ एक्चुअली हाँ बोलने के लिए। किसी दिन 5 वाली क्लास मिस हो जाए तो 7 या 9 बजे नहीं, 7 बजे अलग पढ़ाया जाएगा, 5 बजे अलग। लेकिन कुछ मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग आपको पोर्टल पे ऑलरेडी उसकी दी हुई है। ज्यादा मिस हो जाता है तो एक्स्ट्रा क्लास है या बैच चेंज कर देंगे। मुझको पूरी डिटेल चाहिए कोर्स की, सारी डिटेल मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। एक लिंक आएगा, वहां पे लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा। अभी लिखा हुआ मैटर भी आपको मिलेगा कमल जी, राइट? EMI अवेलेबल है, आप क्रेडिट कार्ड से पे कर लीजिएगा, वहां से EMI करा लीजिएगा। सर इफ आई मिस एनी क्लास मे आई गेट द रिकॉर्डेड वीडियो? ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो हम दे के रखेंगे आपको, डोंट वरी। 200 का क्या होगा अरुण जी? 200 का आपके पास है, आप उसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस कोर्स में आते हैं तो आपको वो नहीं करना है। डोंट गो हार्ड वे, हम आपको आसान तरीका दे रहे हैं, अपने टीचर्स की मेंटरशिप के साथ में दे रहे हैं। मैं, मेरी पूरी टीम आपके साथ वहां काम करेंगे। क्या हम परफेक्ट ट्रेन हो सकते हैं? 100%। आई वॉन्ट 7 PM बैच, आपको मिल जाएगा। गूगल पे नंबर दे दें, मिल जाएगा आपको गूगल पे नंबर। आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस कोर्स विद माई सन हु इज इन 8th स्टैंडर्ड, इज इट फीजिबल? हाँ, 8th स्टैंडर्ड के बच्चे कर सकते हैं, दैट्स नॉट, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। उमेश जी, सर प्लीज टेक 2 installment लास्ट मंथ, आई लॉस्ट माई जॉब। अरविंद जी, आई टोटली अंडरस्टैंड। आप टीम से बात कर लीजिएगा, वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन अगर निकाल सकते हैं तो डेफिनेटली निकालेंगे आपके लिए, राइट? सर इफ आई मिस एनी क्लास मे आई गेट द रिकॉर्डेड वीडियो ऑल्सो? आई एम रेडी टू ज्वाइन द क्लास। कोई क्लास मिस हो जाएगा उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि हमने सारा डॉक्यूमेंट किया हुआ पूरी वीडियो दी हुई है उसकी लर्निंग। प्रैक्टिस की नहीं देंगे आपको वीडियो, बट अगर जरूरत होगी तो हम प्रैक्टिस करा देंगे एक्स्ट्रा क्लास में, राइट? जैसे आज भी एक्स्ट्रा क्लास थी लोगों की जो पुराने वीक में चला। सर लाइफ टाइम एक्सेस? हाँ, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी सब चीजों की LMS पे। आई एम बैच 4th ईयर स्टूडेंट, आई वांट टू बी प्लेस्ड सो दिस कोर्स विल हेल्प। 100%, यू आर ऑलरेडी लेट। यू आर 4th ईयर स्टूडेंट, यू आर लेट, बिकॉज प्लेसमेंट हो रही होंगी या होने वाली होंगी कंपनी के अंदर, और आप जब अभी सीखना स्टार्ट करोगे यू विल टेक टाइम। अंदर आने में ना वो मसाला, इट विल टेक टाइम। यू आर ऑलरेडी लेट, ज्वाइन इमीडिएटली। गौतम जी, आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, आई वांट टू स्विच इंग्लिश मीडियम फॉर BCA। कोई फर्क नहीं पड़ेगा मीडियम का, आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, मेक्स नो डिफरेंस, राइट? दैट दिस पेमेंट इज 3499 इज 3 level complete। Arun ji, 3499 is for complete course, all the course. There is no hidden fee. I don't play that game, right? Sir, class regularly होंगी या alternate days? सारिका जी, एक दिन लाइव होगा, एक दिन पोर्टल पे होगा, तो सीख के आप खुद आएंगे, फिर हमारे टीचर आपको एक ब्रीफ करेंगे और फिर प्रैक्टिस कराएंगे, राइट? इस तरीके से होगा। सर एक्सेस लाइफ टाइम रहेगा? यस, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा आपके पास। गूगल पे नंबर, आई रिक्वेस्ट जितने भी लोग गूगल पे नंबर, पेटीएम नंबर मांग रहे हैं, डोंट राइट, वो मैं खुद ही आपको दे दूंगा इसके बाद में, राइट? हिंदी में सिखाएंगे? यस, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा यहाँ पे। 2 स्टूडेंट मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ, 2 स्टूडेंट वाला। यदि आप एक ही घर से 2 मेंबर हैं तो सेकंड स्टूडेंट की 50% ऑफ होगी, एक ही घर के मेंबर के लिए। फ्रेंड्स में ये वैलिड नहीं होगा। नोएडा में ज्वाइन करना चाहें फिजिकली, हम कोई फिजिकल इंस्टीट्यूशन नहीं चलाते, हमारा मेन बिजनेस स्कूल को सर्व करना है, उसके लिए हम एक पूरा सिस्टम, एक कंपनी चलाते हैं। हमारा कोई इंस्टीट्यूशन आज की डेट में नहीं है। इंग्लिश मास्टर के नाम से हमारी फ्रेंचाइज डिफरेंट सिटीज में चलती हैं जो फिजिकल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, बट वो इस मॉडल पे काम नहीं करते। दैट्स अ डिफरेंट मॉडल, वो स्टूडेंट्स के लिए होता है, राइट? आई वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स विद माय सन, ऑलरेडी आंसर्ड। मुझे विश्वास है सर, मैं एक दिन जरूर अच्छा वक्ता बनूंगा, आपके साथ में ये कोर्स जरूर लूंगा सर, और सर आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच आदर्श जी। सर बुक हिंदी में मिलेगी? नहीं, बुक इंग्लिश में मिलेगी, हिंदी में नहीं होगी। जितनी भी PDF है वो सब इंग्लिश में होंगी। कैन आई रिसीव क्रेडिट कार्ड लिंक? हाँ राजेंद्र जी, वो हम भेज देंगे। किसी भी व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड लिंक चाहिए तो एडमिन के नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। माई सैलरी 15 जनवरी को आपको सैलरी आती है गुरपाल जी, तो ये तो 2-4-5 दिन की ही बात है, टीम से बात कर लीजिएगा, वो कुछ अमाउंट लेके आपको 15 जनवरी तक का समय दे देंगे, यदि कुछ ऐसा हो सकता होगा तो गुरपाल जी आप बात कर लीजिएगा। प्लीज गिव मी हेल्पलाइन नंबर।
अभी जो मैसेज आएगा उसमें जो नंबर होगा नेक्स्ट 24 आवर्स तक वो मेरे पास रहेगा, बट प्लीज रात में कॉल मत कीजिएगा, आई नो आई नॉट बी रिसीविंग, राइट। सो आप दिन में कर लीजिएगा अगर बात करनी होगी तो। आई पे 15 जनवरी, हाँ आई टोटली अंडरस्टैंड गुरपाल जी, लेकिन ये ऑफर कल 8 बजे खत्म हो जाएगा, तो आप टीम से बात कर लीजिएगा, वो आपके लिए कोई सोल्यूशन दे देंगे, राइट। सो गूगल पे नंबर आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड, गूगल पे नंबर मिल जाएगा। आई वांट टू जॉइन दिस कोर्स विद माय सन, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड, गूगल पे अवेलेबल है, गूगल पे, डोंट वरी अबाउट इट। आई एम बैच 4, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस 200 रुपीज कोर्स का क्या होगा, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड, वो आपको मिला रहेगा। यदि इस कोर्स में आएंगे तो आपको वो नहीं करना है, यदि आप इस कोर्स में नहीं आएंगे तो वो है आपके पास, यू डू इट वेरी वेरी सिंसियरली। इफ आई ज्वाइन दिस कोर्स व्हेन द क्लास विल स्टार्ट, उसकी अलग अलग डेट होंगी, जैसे कोई 2 दिन बाद स्टार्ट हो रहा है, कोई 4 दिन बाद स्टार्ट हो रहा है, हम आपको उसकी डेट दे देंगे। माय सन इज स्टैंडर्ड 1, चंदन जी फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए नहीं है ये, तो हमें कोई भी ऐसा पैसा नहीं चाहिए जहाँ पे हम वो प्रोड्यूस ना कर पाए जो रिजल्ट हम वादा कर रहे हैं। एक्चुअली क्लास 8 के स्टूडेंट को मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो समझ लेंगे, वो बड़े लोगों के साथ बैठ लेंगे। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा है ना, विल हैव वेरी डिफिकल्ट टाइम एक्चुअली, वो मजा नहीं करेंगे उसमें। 8वीं क्लास का बच्चा इतना समझदार हो जाता है कि वो बड़ों के साथ बात कर लेता है, बल्कि मैंने देखा वो ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोल लेता है दूसरे लोगों से, राइट। तो चंदन जी फर्स्ट स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, आप कर सकते हैं। कैन वी स्विच क्लासेस, स्विच नहीं होगा लेकिन दूसरा बैच दे देंगे, प्रॉब्लम होती है तो। इंग्लिश टू हिंदी बुक होगी, नहीं इंग्लिश में होगी, क्रेडिट कार्ड लिंक मिल जाएगा। एडवांस क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, पहले बेसिक होंगी, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस, राइट। तो वी विल नॉट स्किप दिस पैटर्न, राइट। आई बिलीव मैंने सारे आंसर्स दे दिए हैं, हो सकता है कुछ आंसर्स रह गए हों बिकॉज अभी भी बहुत सारे मैसेज हैं, बट पर्टिकुलरली वही घूम के आ रहा है। लेस नॉलेज प्लीज, देखिए 199 में लेस नॉलेज नहीं है, वो अलग कोर्स है, बेसिक से इंटरमीडिएट तक का। इस कोर्स में बेसिक से एडवांस तक का है। दोनों में अंतर क्या है, उसमें आप खुद करते हैं LPRI, इसमें LPRI हमारे टीचर्स कराते हैं। यू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली, अगर मैं टीचर, मैं चाहूंगी दिल से आपको 199 में सब कुछ देना, मैं इसको मकसद की तरह से लेके चलूं तो भी मेरे लिए संभव नहीं है, बिकॉज जितनी भी मैन पावर लगेगी उनको सैलरी कहाँ से आएगी, टीचर विल नॉट स्टे। तो हम जितना कम कर सकते थे इसको, हमने इसको उतना कम किया है, राइट। तो 199 का एक अलग कोर्स है, जितने लोग उसे कर रहे हैं फैंटास्टिक, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। जितने लोग इसमें स्विच करना चाहते हैं, योर लाइफ विल बी वेरी इजी, क्योंकि पहला तो इसमें बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, सबसे बड़ी बात टीचर्स आपको खुद कराएंगे। आई वुड लाइक टू गिव इट अ फुल स्टॉप राइट नाउ, मैंने आपको, राइट। सो ये 199 वाला ही ग्रुप है संजीव जी, राइट। 199 का ग्रुप यही है, जितने भी लोग पे करेंगे उनका दूसरा बनने वाला है, दूसरे कोर्स में जाएंगे, बिकॉज नॉट एवरीवन इज गोइंग टू बाय, आई नो दैट, राइट। कल हम ई बुक शेयर करेंगे आपको, रात को 9 बजे हम इसको भेज देंगे। अभी पेमेंट लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ देर तक मैं अपडेट कर पाऊंगा या मैम अपडेट कर पाएंगी, देन हम कल अपडेट करेंगे जो भी लिस्ट में नाम होगा, राइट। बेसिकली आई वांट टू से समथिंग बिफोर आई फिनिश इट। Out of you there will be some people who will not buy this course, there will be some people who will buy this course। यदि आप नहीं खरीदते हैं, still we are a family, एक कोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर ऑलरेडी इन फैमिली, हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। वी विल हेल्प यू जितना भी हमसे होगा आगे तक, इट इज नॉट टू सेल यू द कोर्स, बट आपकी आसान बनाने के लिए। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जितने भी लोग खरीदेंगे विल गेट एक्सेस टू यू नो मी, मेरे को मेरी एक्सेस उनको होगी, दे कैन टॉक टू मी, वो नॉट लाइक ऑन कॉल, बट अगर कोई प्रॉब्लम होती है पूरी टीम होगी, जिसमें संडे में क्लासेस मैं लेने वाला हूँ और रेस्ट ऑफ द क्लासेस टीचर्स और मैं, हम मिलकर लेंगे, टीचर्स लेंगे बट आई विल बी हेल्पिंग यू बेसिकली देयर, राइट। सो आज यही मैं पूर्ण विराम देना चाहूंगा। ये 3 दिन इतनी मस्ती, इतने अच्छे बीते, इतना अच्छा लगा, इतनी एनर्जी थी, और आपकी एनर्जी मेरे से भी डबल, मुझे भी डबल एनर्जी एक्चुअली मिली, और मैंने भी बहुत जोश कर उसके साथ आप सबको पढ़ाया। इसका सारा श्रेय आप सब लोगों को जाता है। सो थैंक यू सो मच, यू हैव बीन अ ग्रेट बेसिकली ऑडियंस। मैं दिल से चाहता हूँ कि आप तरक्की करें, हर एक काम जो अपने हाथ में लें आप उसमें सफल हों, आप देश का नाम, अपने परिवार का नाम, हमारा नाम रोशन करें। इसी कामना के साथ मैं आज की क्लास को पूर्ण विराम देना चाहूंगा। सारी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगी बेसिकली। थैंक यू सो मच पीपल हु आर राइटिंग दीज लवली वर्ड्स, आई रियली ओ दिस, जितने भी लोग इतने अच्छे शब्द लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच, राइट। एंड यू विल गेट ऑल दी सपोर्ट, यू विल गेट ऑल दी सपोर्ट। अभी इस कोर्स का आएगा, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि बेसिकली जो सीट्स होती हैं हमारे यहाँ, दे फिनिश वेरी फास्ट।
तो हो सकता है कल 8 से पहले फिनिश हो जाए. You will come to know, you will see in the group basically they finish super fast. So make your decision. कोई सवाल होगा तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा. सारी इंफॉर्मेशन ग्रुप में आने वाली है. Thank you so much. Bye bye. Great and love you all. Enjoy your course, this course, and rock the world. Bye bye. Have a nice time. Good night.